میرے ساتھ نکالیں یسایہ اس کا 19 باب اس کی 19 آیت سے پڑھیں گے. اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا. آمین. اسی کو 2 بار اس کی 19 اور 20 آیت پر. پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. آمین. آمین. سب بیٹھ جائیں. خدا یسوع مسیح کے بڑے پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وقت بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کے کلام کی باتوں کو سن سکیں. آج جو تحریک خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے وہ کچھ مشکل ہے، کچھ باتیں مطلب ایک عام عقل کے لیے ان کو سمجھنا ناممکن سی بات ہے، ناممکن ہے، لیکن جب مسیح کی عقل ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں گے. تو آپ میں سے کون کون ایکٹیو ہے؟ اچھا، پہلی بات یہ اکثر مطلب مامون ندیم کہتے ہیں کہ جو سو رہا ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اچھا، یہ میسج کچھ ایسا ہوگا، کئی تو اس میں سو جائیں گے، کئیوں کی بالکل اٹینشن اس پہ نہیں آ پائے گی. یہاں پہ آپ نے جو میسج، ہم میسج کی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے نبی کی آواز کو سنا ہے، اور جنہوں نے میسج پڑھا ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، وہ اس بات کو گرپ کر پائیں گے. تو میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کو ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہر شخص، ہر جان اس میسج کو سمجھے کہ ریپچر کیا ہے اور ہمیں کیسے دے بدلاؤ کا تجربہ حاصل کرنا ہے. تو آج جو ہم نے ریفرنس لیا یسایہ 19 باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھا. اس سے پہلے کہ جو چیزیں میں بیان کروں، جو بھی بتاؤں، میں میرے لفظوں میں کمی آ سکتی ہے، میرے بولنے میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کا کلام جو لا تبدیل ہے اس میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہے. آمین. تو میں دعا کروں کہ خداوند آج آئے اور ہم سے بات کرے. میں بڑے ایمان سے اس بات کو کہتا ہوں کہ جتنے یہاں پر موجود ہیں وہ کسی نہ کسی ایک اینڈنگ پوائنٹ پہ جائیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے اس میسج میں سے لیں گے. تو آج جو میسج ہے وہ ہے The Mystery of Pyramids. جو پیرامڈس آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں، اور کچھ جو ہے جنہوں نے مطلب سنا ہوگا کسی مووی کے اندر، کسی پکچرز کے اندر اسے دیکھا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس مسٹری آف پیرامڈس کو، جو مسٹری ہے یعنی اہرام مصر، جو مصر کے اندر اہرام ہے یعنی پیرامڈس ہے، یہ پیرامڈس اپنے ہی اندر ایک عجوبہ ہے اور یہ خاصیت رکھتے ہیں. اور جو دنیا کی سائنس ہے وہ بھی اس بات کا آج تک اندازہ نہیں لگا پائی کہ یہ پیرامڈس کس نے بنائے، یہ پیرامڈس کس نے بنائے، کیسے بنے. اس وقت کوئی اتنی ٹیکنالوجی ان کے لحاظ سے نہیں تھی کہ جس طرح یہ پیرامڈس بنا سکتے تھے وہ لوگ. اب اس کے اندر بہت ساری کنٹراڈکشنز پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ تھیسٹ نے بنائے، یعنی کچھ تھے جبار لوگ تھے، کچھ وہ، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آسمان سے گرے ہوئے فرشتے تھے انہوں نے ان پیرامڈس کو بنایا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈس جو تھے یہ ایلینز کچھ آئے دوسری اسپیس شپس کے آئے اور انہوں نے اس اہرام مصر کو بنایا. اور یہ ایک عجوبہ ہے.
اور یقین جانیے کہ جب ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے تو ہم کوئی سائنس کو نہیں پڑھنے والے, ہم کوئی دنیا کے عالموں کے جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کو کبھی اسٹڈی نہیں کریں گے. ہم دیں گے میسج میں سے ان باتوں کو دیں گے. آیا کہ دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر جو چیز وجود کے اندر ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا جواب بائبل میں نہ ہو. بائبل ہمیں ہر چیز کے بارے میں ٹیچ کرتی ہے, اور بائبل کے اندر کوئی بھی ایسا بھید نہیں ہے جو لکھا نہیں گیا, اور دلہن کوئی ایسا بھید نہیں ہے جسے وہ جانتی نہ ہو. ہمیں دیکھیں دنیا کے لیے مسٹری ہو سکتی ہے, مسٹری یعنی پوشیدہ کسی چیز کا بند ہونا, لیکن ہمارے پاس ایپوکلپس ہے, یعنی ہمارے پاس کھلا ہوا مکاشفہ ہے, ہمارے پاس وہ کھلے ہوئے بھید ہیں. اور اگر ہمارے پاس کھلے ہوئے بھید ہیں تو انہی کہیں کھلے ہوئے بھیدوں کے اندر یہ مصر کے پیرامڈز کا کھلا ہوا بھید بھی موجود ہوگا. آمین. خدا نے آپ کو برکت دے. آئے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں, آپ مصر کے پیرامڈز دکھا دیں. اگر لائٹ تھوڑی سی پتم ہو سکتی ہے. سب کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی اور پکچر دیکھ لیں جس میں یہ بڑی نظر آ رہی ہے. یہ پیرامڈز ہے, یہ تصویر کے اندر دکھنے میں بڑے چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں, اور آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے, سوری میرا کہنے کا مطلب ہے کن کن لوگوں نے اس پکچر کو اس سے پہلے دیکھا ہے, اس میسج سے پہلے, اور اب وہ ہاتھ کھڑا کرے جن کے لیے یہ بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. مطلب آپ میں سے ان چیزوں کو, یہ جو پیرامڈز ہے, یہ جو ارحام مصر ہیں, یہ دنیا کے لیے, اور یہ ابھی نہیں بنے, یہ ابھی نہیں بنے, نہ یہ کوئی 1000 سال پہلے بنے ہیں, نہ یہ 2000 سال پہلے بنے ہیں, نہ یہ 3000 سال پہلے بنے ہیں, بلکہ یہ نوح کے طوفان آنے سے پہلے کے یہ زمین کے اوپر موجود ہے. اور جو ہم نے یسایہ کی کتاب میں سے 19ویں باب کی اس کی 19ویں آیت میں پڑھا ہے, اور یہ اس کی میں پہلے لوکیشن بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ موجود کدھر ہے. اگر انہیں جیوگرافیکلی دیکھا جائے, اگر انہیں میپس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے, تو یہ بالکل غزہ کے اندر ہے. غزہ ایک شہر ہے مصر کے اندر, اور یہ غزہ کے بالکل بارڈر کے اوپر ہے. آپ نے پیچھے سنا ہوگا کہ جو ایک جھڑپ چل رہی تھی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان, وہ بالکل بارڈر آف غزہ ہے, وہ بارڈر. اور خدا نے کیا کہا اس وقت ملک مصر کی وسط میں, یعنی کہ ملک مصر کے بالکل درمیان کے اندر, وسط کے اندر کیا کروں گا میں, خدا کا وسط میں خدا کا ایک مذبح, اور اس کی سرحد پر, اس کی سرحد کے اوپر ایک ستون ہوگا. کیا ہوگا؟ ستون ہوگا. ستون, اسے پیرامڈ بھی بول سکتے ہیں ہم, اسے ایک برج بھی بول سکتے ہیں. اگر آپ برج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جب وہ نمرود تھا, جب اس نے خدا کے خلاف بغاوت کرنا چاہی, اور اس نے اپنے لیے بابل کا برج بنوایا, اور اس کی خواہش تھی کہ میں اس برج کو اتنا اونچا لے جاؤں گا کہ یہ خدا تک رسائی حاصل کرے. اور ایسا کیا ہوا, وہاں سے ہی دیکھیں پہلے سب کی زبان ایک تھی, جب سارے ہی وہ زبان, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا زبان بولتے تھے, لیکن اس کے بعد جب بابل کا برج بنایا گیا, تو جب وہ بنا رہے تھے اور ان کی زبانوں کے اندر تضاد آ گیا. وہاں پر زبانوں کے اندر لوگ نہیں جانتے. بائبل اس بات کا جواب دیتی ہے کہ میری اردو زبان ہے, ساتھ والے کی انگلش ہے, وہ کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی پنجابی بول رہا ہے, کوئی انگلش بول رہا ہے, کوئی فارسی بول رہا ہے, کوئی جرمن بول رہا ہے. یہ زبانوں کا تضاد کدھر سے پیدا ہوا؟ سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ 30 کلومیٹر کی دوری پہ جانے سے زبانیں بدل جاتی ہیں, بلکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم 30 کلومیٹر کے سفر کرتے ہیں, بالکل ایکسنٹ بدل جائے گا, زبان نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے, لیکن زبانیں کہاں سے بدلی؟ جب انہوں نے بابل کا برج بنانا شروع کیا, خدا کے خلاف بغاوت کرنی شروع کی, اور اس نے کیا کیا, آسمان کے اندر تیر چلائے. آسمان کے اندر اس نے تیر چلائے, یعنی وہ خدا کو للکار رہا ہے, وہ خدا کے خلاف اٹھنا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا ایک نشان ہو, آنے والے زمانے کے لوگ جانیں گے کہ یہ جو میں برج بناؤں گا یہ میری ایک پہچان بنے گا. جب میں مر جاؤں گا, چلا جاؤں گا, تو لوگ میری پہچان کس کے وسیلہ سے کریں گے؟ برج کے وسیلہ سے. لیکن جو آج تک خدا کے خلاف اٹھا ہے اس کا صفائی ہستی سے نام ہی مٹ گیا. جو بھی آج تک خدا کے خلاف اٹھنا چاہے
वो ख्याल चाहे हो, वो थॉट हो, ईमानदार की जिंदगी के अंदर उनका खात्मा हो गया और वो दुनिया की सफाई हस्ती से मिट गया है। और जिसने खुदा के खिलाफ बगावत करना चाहिए, एक जो सतून है हमें बाबुल के बुर्ज में से मिलता है, और जो ये पिरामिड्स है इसके बारे में ईसाया में लिखा है कि क्या करूंगा मैं, और उसकी सरहद पर खुदावन का एक सतून होगा, खुदावन का एक सतून होगा। अब जो जियोडिक्स है और जो अथीस्ट है, जो बुत परस्त लोग हैं, जो डेमोनिस्ट है, वो इस बात का इकरार नहीं करते। बाइबल में कह रही है कि वो मुल्क मिस्र में रब्बुल फाज के लिए निशान और गवाह होगा। वो क्या होगा? मुल्क मिस्र के अंदर क्या होगा? रब्बुल फाज के लिए निशान होगा। और वो क्या होगा? गवाही देगा। क्या? कौन? वो सतून, वो पिरामिड, वो मिस्ट्री, वो एक बात को रिवील करेगी। बेसिकली हम 7 मोहरों पर बिलीव करते हैं और हम ईमान रखते हैं कि 7 मोहरें खुल चुकी हैं, और उन्हीं मोहरों में से कहीं ना कहीं पर ये पिरामिड्स भी हैं। अभी आगे देखेंगे, ये कोई इतनी सिंपल सी बात नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको जो नहीं जानते इन पिरामिड्स को, मैं सिर्फ उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में जब इन्हें स्टडी किया गया, साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च की, साइंस ने इसके अंदर गए, इन्होंने प्रॉपर इसके, अच्छा ये बिल्कुल इसके अंदर किंग शाफ्ट है, किंग चैम्बर है, इसके अंदर दाखिली रास्ता है, इसके अंदर निकलने का रास्ता है, और इसके ऊपर चोटी का पत्थर नहीं है, इसके ऊपर जो कैप स्टोन है वो नहीं है। और ये क्यों नहीं है, ये किस वजह से नहीं है, और ये किसने बनाए, ये कहां से बने, ये बने क्यों, इसमें है क्या, हम ये सब कुछ बाइबल में से और मैसेज में से लेंगे। आमीन आमीन आमीन। आपने ग्रिप बनाए रखना है, थोड़ा सा इसे लूज करेंगे तो आप पूरे टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स, यानी इन पिरामिड्स का भेद क्या है, इसके पीछे एक रेवलेशन क्या है, इसके पीछे एक छुपी हुई बात क्या है। और वो छुपी हुई बात मैं पढ़ना चाहूंगा, नबी का कोट जो है इसमें पिक्चर है वो दिखा दीजिए। अब हर भेद के ऊपर से पर्दा ना मैंने उठाया, ना भाई जुनेद ने उठाया, ना हम सब में से किसी ने उठाया। ये हर भेद में से पर्दा किसने उठाया? वो मुकाशवा 10 की आवाज आई, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में ये पशीदा मतलब ये सारे पशीदा भेद कब खुलेंगे? इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल, 7वें फरिश्ता के आवाज देने के जमाना में, जब वो नफसी का फूकने को होगा, तो खुदा का पशीदा मतलब जो उस खुशखबरी के माफी जो अपने बंदे नबियों को दी थी, क्या होगा? पूरा होगा। और देखें, यहाँ हमारे जमाना के अंदर खुदा ने एक नबी को भेजा जिसने इन मिस्ट्रीज को खोला, जिसने इन भेदों को खोला, ताकि हम इन बातों को अंडरस्टैंड कर पाए। अब देखें, यहाँ पर जो है नबी ने इसके बारे में क्या कहा है। बेशक कोई ऐसी चीज नहीं है जिस टॉपिक को नबी ने उठाया। नबी ने बायोलॉजिकल चीजों को उठाया, नबी ने जिन्स को उठाया, नबी ने बीजों को उठाया, नबी ने साइंसदानों को उठाया, नबी ने केमिकल्स को उठाया। नबी ने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। आमीन। आप इस बात पर बिलीव करते हैं? खुदा ने इस जमाना के अंदर पूरा भेद खोला है, थोड़ा सा नहीं, कोई दरमियाना नहीं, कोई आधा नहीं, खुदा ने पूरा भेद खोला है। इसका मतलब अगर सारे भेद खुल चुके हैं तो उनमें से किसी ना किसी जगह पर मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स भी रिवील हो चुका है। हमें सिर्फ इसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, हमें उसको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके हमारे पास एक पिरामिड बन के आएगा। अब ब्रदर बैन इसके बारे में क्या कहते हैं? और ब्रदर बैन कहते हैं, और मैं मिस्र गया और इन अरामों में मैं पढ़ दें सारी ब्रदर बैन, मैं आपको बताता हूँ। ब्रदर बैन जो थे, ब्रदर जब मिस्र के अंदर गए हैं तो ब्रदर बैन ने सारी दोपहर इसको देखते गुजारी। ब्रदर बैन ने इसको देखा, इसको फोकस किया। और इससे पहले हम इसकी तरफ आते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हम। ब्रदर बैन कहते हैं कि खुदा ने 3 किस्म की बाइबलें लिखी। कितनी? 3 किस्म की। खुदा ने कितनी किस्म की बाइबलें लिखी? 3 किस्म की। खुदा ने 3 टाइप्स ऑफ बाइबल लिखी। पहली जो बाइबल थी वो किसके अंदर लिखी? आसमान में। आसमान के अंदर, किसकी फॉर्म के अंदर? सितारों की शक्ल के अंदर। सब
सब इस बातों को रिपीट करेंगे, ये बातें बहुत जबरदस्त है। खुदा ने पहली बाइबल किसकी शक्ल में लिखी? आसमान के अंदर सितारों के ऊपर, और उन्हीं सितारों को पढ़ते हुए जो मसीही थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचे। उन्हीं सितारों को वो देखते हुए वो उसको आकर सजदा करते हैं। और वो जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था वो कहाँ है? उसे देखते देखते किसको देखा उन्होंने? एक सितारे को देखा। उन्होंने कहा हमने उसका सितारा देखा, हमने उसका सितारा देखा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का कोई सितारा था, प्रभु यीशु मसीह का कोई स्टार था। और स्टार को जब देखा गया, उस स्टार को देखते 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 वो कहां पर पहुंच गए? चरनी में नहीं, चरनी के पास नहीं वो पहुंचे। और यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुआ था तब तो सितारा दिखाई दिया था, और वो 2 साल गुजरे। यीशु मसीह तब 2 साल के थे जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचे। और खुदावंद यीशु मसीह कहां पर थे? यीशु मसीह चरनी में नहीं थे। यीशु मसीह किस मुल्क के अंदर थे? मुल्क के मिस्र के अंदर। कहां पर थे? मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर, मिस्र के अंदर कुछ तो बात है। मिस्र के अंदर कुछ तो बात है। मिस्र के अंदर खुदा ने क्यों यूसुफ को भेजा? मिस्र के अंदर खुदा ने क्यों याकूब को भेजा? मिस्र के अंदर ही क्यों गुलाम हुए? वो किसी और मुल्क की गुलामी में चले जाते। खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी के अंदर क्यों भेजा? दिस इज द क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1। खुदा ने उन्हें मिस्र के अंदर क्यों भेजा? और जब उसे लेकर गए खुदावंद यीशु मसीह को, जब मरियम और यूसुफ ले गए, वो मिस्र के अंदर क्यों लेके गए? पॉइंट्स है। और ये सब चीजें एक बात से जुड़ी हुई हैं, इनके पीछे एक रेवलेशन है। और नबी इस बात के बारे में कहते हैं कि खुदा ने कितनी किस्म की बाइबलें लिखी? 3 किस्म की। सबसे पहली बाइबल लिखी सितारों की शक्ल के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे आदम से। हमारे पास ये रिटन फॉर्म के अंदर बाइबल है, आप सब पढ़ते हैं। आप इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो यशायाह की किताब में से 19 बाब का अगर 19 आयत निकालें तो आप मेरे साथ बाइबल खोलेंगे। आप कहां से निकालेंगे? बाइबलों के पन्ने पलटेंगे और आप उस हवाले के ऊपर जाएंगे, उस हवाले को रीड कर देंगे। लेकिन जब खुदा आदम के साथ आता और बातें करता था तो उसको किधर से रेफरेंस देता था? उसको किधर से वो बाइबल बनाता था? उसको किधर से वो बाइबल सिखाता था? खुदा आदम से आता और खुदा ठंडे वक्त में कोई इधर उधर की बातें नहीं करता था। खुदा उसके पास आता और पूछता ये नहीं था कि शेर दिसना, बकरी दिसना, लेले दिसना, वो कई ऐसी बातें नहीं करता था। उसे टीच कर रहा था, उसे सिखा रहा था, उसे बता रहा था कि ये दरख्त जो मैंने लगाया है इसके बाग के सारे दरख्तों का तो फल खा सकता है, लेकिन ये फल तू नहीं खा सकता। जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मर जाएगा। और वो खुदा जमीन के ऊपर कोई चांद बनाकर नहीं समझा रहा था, खुदा से आसमान के अंदर सिखा रहा था। खुदा से कहता था इधर आ, मैं वो तुझे सितारा दिखाऊं, इधर आ, मैं वो तुझे सितार दिखाऊं, इधर आ, मैं मुझे तुझे तेरा सितारा दिखाऊं, इधर आ, मैं तुझे तेरे आने वाले लोगों का सितारा दिखाऊं। खुदा समझाता था। खुदा को नहीं पता था आदम गिरेगा, खुदा को नहीं पता था। क्या हमारा खुदा महदूद है? वो महदूद है। और ये पता था कि खुदा जानता था सब कुछ। खुदा से कोई भी चीज पोशीदा नहीं थी। उसके बराए आलम से बेशतर उसने बाइबल जो थी वो सितारों की फॉर्म के अंदर, उसने सितारों की शक्ल के अंदर बाइबल लिख दी थी। अब उस बाइबल को पढ़ना किसको आता है? किसको आता है? खुदा ने किसे सिखाया? आदम को सिखाया। आदम को सिखाया। और आदम सीखता था। आदम सितारों की तरफ देखता और देखता था ये सितारा आज मुझे सीखने को मिला कि ये है, ये सितारा, ये आने वाला जो जहान के गुनाह उठा लेगा ये वो है। और उसका नाम खुदा ने उसे बताया था और उसका नाम ओराइन है। और उसके अंदर एक बेल्ट है, उसके अंदर 3 स्टार्स हैं, उसके 3 सितारों का इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और उसके नीचे एक तलवार है और उस तलवार के अंदर 3 सितारे हैं और उसका नाम ब्राइट स्टार है। और उसके अंदर 3 सितारों का ये मतलब है। ये किसको सिखाने को मिल रहा है? किसको सीखने को ये बातें मिल रही हैं? आदम को। ये किससे सीखता था ये सारी बातें?
बाइबल में लिखा है कि ईमान कहाँ से पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहाँ से है? मसीह के कलाम से। सुनना मसीह के कलाम से है। आमीन। और नबी ने कहा सबसे पहली बाइबल खुदा ने किसकी फॉर्म में लिखी? सितारों की शक्ल के अंदर। हम थोड़ा सा ही इसे इतना ही सीखेंगे कि खुदा ने पहली बाइबल किसमें लिखी? सितारों में। इसमें आगे मजीद नहीं जाएंगे। हम नेक्स्ट बाइबल की तरफ जाते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं और जो दूसरी बाइबल थी, ब्रदर कहते हैं कि दुनिया ने इसके बारे में डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स बना लिए, पिरामिड के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब ने इसके बारे में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट बना रखे हैं कि कुछ कहते हैं ये हमारा फलाना फलाना देवता था, उस देवता के इतने हाथ थे, उसने जनाब अपने उसके बड़े चेले थे, वो जनाब एक एक पत्थर, ये टनों के हिसाब से एक पत्थर बना। और ये कोई सादा पत्थर नहीं है, ये बड़े बड़े, ये बड़े शेप्ड हैं। आमीन। इनको ऐसी तरतीब से काटा गया है और इन्हें ऐसी तरतीब से रखा गया है कि इनके दरमियान में से ब्लेड तक गुजर नहीं सकता। अच्छी बात। इनसे ब्लेड भी नहीं गुजरता। ब्लेड तक नहीं, ये क्यों नहीं गुजर सकता? इसके पीछे भी रेवलेशन। आमीन। उसके पीछे इतनी स्पेस क्यों नहीं है कि उसमें से ब्लेड भी गुजर जाए? ये पिरामिड, ये बाइबल है। आमीन। ये पिरामिड हनूक ने बनाए। नबी ने बताया। ये किसने बनाए? हनूक ने बताए। मुझे नहीं पता उसने कैसे बनाए। यस। मुझे नहीं पता ब्रदर उसने कैसे बनाए। नबी ने कहा ये पिरामिड हनूक ने बनाए तो हनूक ने बनाए। आसमान डाल सकता है, जमीन डाल सकती है, लेकिन जो खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं वो हरगिज़ नहीं डाल सकती। आमीन। यस आमीन। देखें ये पिरामिड जब बने तो बनाए किसने? हनूक ने। हनूक ने इन पिरामिड्स को बनाया। आमीन। खुदा के साथ साथ चलता था, उठा लिया गया। यस। उसका चलना क्या था? यस। उसका खुदा के साथ चलना क्या था? हम देखेंगे सबसे पहले। अच्छा, अब देखें हनूक ने कहां से सितारों का इल्म सीखा? सॉरी, उसने पिरामिड्स कैसे बनाए? हनूक को कैसे पता चला? हनूक ने बाइबल किधर से सीखी? यस। हनूक को खुदा का किधर से पता चला? क्या उसे इल्हाम हुआ? सोते सोते पता चला हाँ एक यहोवा पाक खुदा है जिसने आदम को बनाया? ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। आमीन। उसने सुना किधर से? उसने किसी ना किसी जगह से सुना कि खुदा ने पहली बाइबल लिखी है सितारों के अंदर। आमीन। वो हर कोई पढ़ नहीं सकता। यस। ये बाइबल तो हर कोई पढ़ सकता है, ये बाइबल हर कोई पढ़ सकता, लेकिन समझ कोई कोई सकता है। आमीन। वो बाइबल आदम पढ़ सकता था, उसके बाद किसी को पढ़ाया भी जा सकता था, समझ कोई कोई सकता था। उन सितारों की प्लेसिंग, उन सितारों की जो मैपिंग है, उनको समझना खुदा की अक्ल के बगैर नामुमकिन सी बात यस आमीन। और जब आदम आप समझ, हमने इन चीजों को बड़ा ही पैदाइश बना। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि हमने लोगों ने बड़ा लाइट सा लिया। उन्होंने पढ़ा आज खुदा ने जमीन आसमान बनाए, आदम ने गुनाह किया, वो निकल गया, उसके बाद उसमें इब्राहिम आ गया, बादशाह बांधी, खुदा ने इसहाक आ गया, इसहाक से 12 बेटे हुए। ये चलते चलते ये पैदाइश की किताब है। लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि 2 किताबें ऐसी हैं, मुकाशफा और पैदाइश की किताब, जिससे शैतान को शदीद नफरत, आमीन। शदीद से भी शदीद नफरत है। Yes. क्यों? वो इन किताबों के अंदर आके तो नंगा हो जाता है। यस। और वो नहीं चाहता कि वो नंगा हो। वो नहीं चाहता कि मेरी दुखती राह पर हाथ रखा जाए। वो नहीं चाहता कि मैंने जो काम बागेदर में किया था वो किसी के सामने आया हो जाए। Yes. और उस कामों का आया करने के लिए खुदा ने 7वें फरिश्ता के ज़माने के अंदर इन बातों को खोला। आमीन। वो मिस्ट्री जो खो चुकी थी, वो जो बस्तर खुदा ने आदम को बनाए, वो जो बस्तर खुदा ने आदम को बनाए, वो जो पोशाक खुदा ने आदम को पहनाई, वो पोशाक खुदा की 7 मोहरें थी। आमीन। खुदा की 7 मोहरें थी। वो रेवलेशन था प्रॉपर, और वो उन्हीं रेवलेशन से आदम ढपा हुआ था, उन्हीं मुकाशफात से आदम घिरा हुआ था। आदम ने किन चीजों को खोया? उन्हीं रेवलेशंस को, उन्हीं मुकाशफात को खोया, उन्हीं भेदों को खो चुका है आदम। और यही मिरास थी, यही मिरास थी जिसे वो खो चुका है। यही वो चीजें थी जो इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आती थी, जो खुदा ने इसे मिरास के अंदर दी थी, इसे आदम खो चुका। लेकिन जब आदम बाग एदन में से निकला, क्या बाइबल वहां पर खत्म हो गई? असल मिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है, असल भेद यहां से स्टार्ट होता है। अब देखें, नूह
जब आदम 130 बरस का था तो उससे कौन पैदा हुआ? सेत पैदा हुआ। Yes. इसका मतलब सेत की और आदम की डेफिनेटली बाद में रफाकत होगी। क्यों? क्योंकि आदम 130 साल का था और 130 साल के बाद भी वो 800 बरस जीता रहा। इसका मतलब आदम की कुल उम्र कितनी हो गई? 230। मैं मार्क कर दे सकता हूं? मैं आपको ना इस चीज को कोशिश करता हूं कि आपको ये बात समझ लगे। आदम है, ठीक है, और इसकी टोटल जो एज है वो कितनी है? 930 बरस। 930 बरस। और आदम जब 130 बरस का है तो उससे कौन पैदा हो रहा है? सीत पैदा हो रहा है, ठीक है, सीत पैदा हुआ। और उसके बाद जब सीत जो था आगे बढ़ा, सीत से कौन पैदा हुआ? अनूस पैदा हुआ। अनूस जब पैदा हुआ तो आदम की, हमने अनूस की एज को नहीं देखना, हमने सीत की एज को नहीं देखा, हमें आदम को देखना। आदम को देखना है। Yes. आदम की कुल एज जो थी तब थी 235 साल। आदम कितनी एज का हो गया? 235 का। और जब अनूस से कनान पैदा हुआ, ये कनान हो रहा है, और जो नूह से कनान पैदा हुआ था वो कनान हो रहा है, ये कनान हो रहा है। ये सेंट्स के अंदर, ये खुदा के बेटों के अंदर शामिल है। आमीन। वो जो कनान था वो मलाउन था, वो लानती था। वो लानती था। अक्सर काइन को भी मिक्स किया जाता है, Yes. अक्सर मतोसला को भी मिक्स किया जाता है, अक्सर हनूक को भी मिक्स किया जाता है। बाइबल के अंदर एक हनूक नहीं, बाइबल के अंदर काफी हनूक पाए जाते हाँ हैं। जी। और जो ये कनान था, ये खुदा के बेटे आ रहे हैं अभी, ये खुदा के बेटों ने, ये वो वाले बेटे हैं, हाँ जी। खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। अभी आगे बढ़ेंगे। अभी जब कनान पैदा हुआ तो एज कितनी हो गई आदम की? 325 साल, ठीक है। और जब महलिएल पैदा हुआ तो आदम की एज होगी 395। और जब यारद पैदा हुआ तो आदम कितने का हो गया? 460 बरस। अब देखें, लेकिन जब हनूक पैदा हुआ तो आदम की एज है 622 साल। ये सारी चीजें लिखने का मतलब ये था कि आदम तब जिंदा था जब हनूक था। Yes. आमीन। आदम तब जिंदा था जब हनूक था। हनूक, आदम मरा नहीं तब। हमने समझा आदम चला गया, मैं ये समझता था। आज बाद में जब इन मिस्ट्रीज के ऊपर से जब पर्दा उठता है तो फिर ये बातें समझ लगती है। और भाई हनूक को किधर से चीजें मिली? आदम से। हनूक किस तरह खुदा के साथ साथ चलता था? हमने सिर्फ इतना देखा, अभी आगे बहुत कुछ बढ़ा है। सब साथ है मेरी, सब सुन रहे हैं, समझ लग रही है सबको? किसी को नींद आए तो वो खड़ा हो सकते हैं। ये देखें, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग्स है। ये आप इसे मिस्ट्री ऑफ पैरामिड्स ना देखें, ये मिस्ट्री ऑफ रैप्चर है। आमीन। ये रैप्चर का भेद है अच्छी बात है। कि किस तरह आज हमारा फोकस है कि किस तरह हनूक उठाया गया। आमीन। हनूक उठाया क्यों गया ब्रदर? हमने बाइबल में ये पढ़ा, हनूक खुदा के साथ साथ चलता था। Yes. और नबी ने बताया वो खुदा के साथ किस तरह चलता था। आमीन। उसका चलना क्या था? Praise God. उसने चलते चलते क्या कुछ किया? उसने चलते चलते क्या से कुछ सीखी? उसकी जिंदगी का हनूक ईमानदार था, Yes, आमीन। हनूक रास्तबाज था। आमीन। बाइबल कहती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। इसका मतलब हनूक ने भी मसीह के कलाम को सुन लिया था। आमीन। अपना किससे था? आदम से सीखा था। उसने आदम से बातों को सीखा था। आमीन। और आदम हनूक के साथ रफाकत रखता था। Praise God. और जब रफाकत होती है तो मिस्ट्रीज खुलती है। जब रफाकत होती है तो भेद आश्कारा होते हैं। आमीन। और देखिए, अभी हम पिरामिड्स के ऊपर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं हनूक को, हनूक की जिंदगी को देखेंगे ब्रदर। नबी कह रहे हैं कि इजिप्ट के जो मिस्र के अंदर जो पिरामिड्स हैं और हमें मिस्र जो हैं उनको किसने बनाया ब्रदर? हनूक ने। किसने बनाया? हनूक ने। मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स जो है वो किसके वसीला से रिवील होगी? हनूक। हनूक के वसीला से। आमीन। अब देखें, ये ड्यूरेशन है, ये जो हमें मिस्र का सारा ड्यूरेशन बनता है तकरीबन ये पहले 1000 साल के अंदर अंदर आ रहा है। ये कौन से? पहले 1000 साल के अंदर अंदर आ रहा है। उसके बाद तो नूह का तूफान आ जाता है। इसका मतलब नूह के तूफान आने से पहले पिरामिड मौजूद थे। Yes, आमीन।
नूह के तूफान आने से पहले पिरामिड्स थे। पिरामिड्स मौजूद थे। इसीलिए तो लिखा है यशायाह के अंदर हमने जो पढ़ा कि रब्बुल फाज का निशान होगा, जिसके ऊपर एक बॉर्डर के ऊपर मिस्र के अंदर, मिस्र की वस्त में और उसकी सरहद के ऊपर एक निशान होगा। और वो क्या करेगा? वो यहोवा खुदा का निशान होगा और वो गवाही देगा। मतलब ये जो पत्थरों के बने हुए पिरामिड्स हैं, ये किस तरह खुदा की गवाही दे रहे हैं? ये किस तरह गवाही दे रहे हैं? ये कैसे बता रहे हैं खुदा की गवाही? आप किस तरह गवाही देते हैं? बाइबल पढ़ते हैं, आप बताते हैं जी मैंने फॉर एग्जाम्पल ब्रदर नदीम जब पिछले दिनों के अंदर उन्होंने गवाहियों का सिलसिला शुरू किया, गवाहियां शेयर करते थे हमारे साथ कि नबी की जिंदगी के अंदर किस तरह काम हुए। इन्होंने किधर से सीखा? पढ़ी, पढ़ के सुन के इन्होंने हमारे साथ वो गवाहियां शेयर की। ये पत्थर किस तरह गवाही दे सकते हैं? अब बात समझ लगेगी वो, अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि एक बाइबल इन पत्थरों के अंदर, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बाइबल इन पिरामिड के अंदर ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। और वो किसने लिखी? हनूक ने। आमीन। हनूक ने किधर से सीखी बाइबल? आदम से। आदम से। और आदम ने कुछ रिटन फॉर्म के अंदर बाइबल मौजूद थी ब्रदर, तब जो हनूक को सिखाई गई। हनूक को आदम लेकर बैठता था और कहता था इधर आ, मैं तुझे खुदावंद यीशु मसीह दिखाऊं, इधर आ, मैं तुझे बताऊं कि किस तरह रिस्टोरेशन होगी, किस तरह छुड़ाया जाना होगा, किस तरह छुटकारा होगा। उसने क्या हनूक को नहीं पता था कि बागे अलग के अंदर खुदा हुआ है? क्या हनूक को नहीं पता था कि खुदा ने कुछ बातें थी, खुदा की कुछ कॉवेनेंट थी जिनको हमारे बाप दादा ने तोड़ डाला? अब उनकी रिस्टोरेशन कैसे होगी? उसने कहा इधर आ, मैं तुझे सितारे दिखाऊं। उनका नाम है ओराइन, और ओराइन बेल्ट है, उसके अंदर 3 सितारे हैं। पिक्चर दिखा दिया। उसके नाम, एक सितारे का नाम है आलनीतक। एक सितारे का क्या नाम है? आलनीतक। ये थोड़ा सा अभी हर सितारे का एक मतलब है, हर सितारे का एक नाम है और उसका आगे एक मतलब है। अब बाइबल पढ़ रहे हैं हम किसकी शक्ल के अंदर? सितारों की शक्ल के अंदर। यीशु मसीह का एक सितारा था, यीशु मसीह का एक सितारा था। वो सितारा मजूसियों ने देखा और हमारे जमाने के अंदर भी एक सितारा है। इसका मतलब ब्रदर विलियम ब्रैनम आसमान के अंदर कुछ सितारों के अंदर मौजूद है। एक औरत जो ज्योतिकर थी, जो रोशनियों को जानती थी, जो ज्योतिकर थी, जो एक जैसे कह लें कि वो एक जादूगर जैसे बोलते हैं, और वो एक वेदों को जानने वाली थी। और जब उसने नबी को देखा, नबी को कहते तेरे साथ एक खास किस्म की रोशनी चलती है, तेरा एक सितार है, तेरा एक सितारा है, तू आम बच्चा नहीं है, तू एक खास बच्चा है। और जब वो पैदा हुआ तो एक ढाबाई, एक तरफ फायर आया और वो इस बात की निशानदेही कर रहा था कि ये एक खास बच्चा है। इसका भी आसमान में एक सितारा मौजूद है। देखिए यीशु मसीह का सितारा मौजूद है, ब्रदर ब्रैनम का सितारा मौजूद है, यशायाह का सितारा मौजूद है, दानियल का सितारा मौजूद है, जितने बाइबल के अंदर मौजूद है उनका सितारा मौजूद है। बाइबल में किसी ना किसी जगह पर मैं भी हूँ, आमीन। इसका मतलब आसमान पर आपका और मेरा सितारा भी मौजूद है, आमीन। आपका और मेरा स्टार भी मौजूद है। बनाए आलम से पेश कर, जब खुदा ने आलम को बनाना शुरू किया, उसने यूनिवर्स के अंदर सितारों को एक अलग किस्म की एक मैपिंग दी। इसीलिए तो आसमान के अंदर निशान घटते हैं, इसीलिए तो आसमान के सबसे पहले खुदा कहां पर करता है? ये किसी के पास लेजर है वो उसे बंद कर दे। ये खुदा का एक, ये घर चर्च खुदा की हजूरी में मौजूद है, और ये चीजें सारी ये गलत चीजें हैं, ये ना करें। ये सितार है, ये छोटा सा मैं वो दिखाते हैं और उसकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या देखो की जा रहे हैं, लेकिन हम तो सितारों की बातें कर रहे हैं। आमीन। अपने पॉइंट को ना छोड़े, ओके, ग्रिप पकड़े लगे। और देखें ये जो ओराइन बेल्ट है, हमारे आसमान के अंदर लातादार सितारे हैं,
हम उनको नहीं गिन सकते, Yes. लेकिन खुदा ने गिना हुआ है उसे, Amen. खुदा ने उन्हें गिना हुआ है, Amen. और खुदा उनके मतलब भी जानता है। Praise God. और वो सिर्फ सितारे नहीं देखता, वो जिस सितारे के आप साथ जुड़े आपको वो देखता है। Amen. वो जानता है कि जुनैद का ये सितारा है, Praise God. नदीम का ये सितारा है, वकास भाई का ये सितारा है, मतलब किसी ना किसी जगह पर जो सितारा है खुदा आपको जानता है। Amen. लोग नहीं गिन सकते, लेकिन खुदा जानता है, खुदा इसकी काउंटिंग्स को जानता है, खुदा इसकी बैच को जानता है। जो लास्ट पिक्चर जो आपने शेयर किया ना मोबाइल में से, वो नहीं है, वो दिखा, ये देखें जी, ये अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबको नजर आ रहा है? Yes. सब देख पा रहे हैं? अब ये एक पिक्चर है, ये कुछ सितारों का झुरमुट है। आपने ज़ियोडिक सुने होंगे, ज़ियोडिक सुने आपने? आसान लफ्जों में बुर्ज, और ये सितारे, Gemini. मेरा सितारा केड़ा, मेरा लियो, मेरा स्कॉर्पी, जमनाई, लोगों ने इसे कुछ और समझा, Yes. लेकिन ये बाइबल में मौजूद है। Amen. ये सारे ज़ियोडिक्स, ये सारे सितारे बाइबल के अंदर मौजूद है, और खुदा ने प्लेस किया हुआ है। Yes. ब्रदर ब्रांड का कोई सितारा था ब्रदर, Amen. ब्रदर ब्रांड प्लेलिस्ट के अंदर आ रहा है, और प्लेलिस्ट के अंदर एक चमका हुआ प्लेलिस्ट पता कितने, और ये है ओराइन। ये इस सारे सितारे को क्या कहते हैं? Orion. ओराइन। कुछ सितारे जुड़ते हैं, लियो बनाते हैं, कुछ सितारे जुड़ते हैं, मछली बनाते हैं, कुछ सितारे जुड़ते हैं, प्लेलिस्ट बनता है, कुछ सितारे जुड़ते हैं, और वो सितारे मिल के कुछ बना रहे हैं। आमीन। हम सीखेंगे इसको बस, इसे खुदावंद यीशु मसीह का बोला, ये इसे बोला जाता है कि दिस इज जीसस क्राइस्ट। ये खुदावंद यीशु मसीह है, Yes. Amen. ये प्रभु यीशु मसीह है। Amen. कितना अजीब लग रहा है ना, अजीब लग रहा है, लेकिन नूह ने ऐसे ही पढ़ा इन चीजों को, Yes. Amen. सॉरी हनूक ने इन चीजों को ऐसे ही पढ़ा, और नूह ने भी ऐसे ही पढ़ा, Yes. नूह ने भी ऐसे ही पढ़ा। अब देखते हैं, ये है ओराइन बेल्ट। सिर्फ हम कुछ एक चीजें इनमें से सीखेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आसमान के सितारों के अंदर बाइबल मौजूद है। Amen. सिर्फ ये देखने के लिए, अगर पूरी बाइबल की वर्सेस तो नहीं पढ़ी जा सकती, तो लिहाजा हम कुछ इसमें से देखेंगे। ये ओराइन बेल्ट है, और ये ब्राइट स्टार है, इसे स्वॉर्ड बोला जाता है, तलवार बोला जाता है। ये महाराजा की तलवार ही बोला जाता है। इसे राजा की तलवार बोला जाता है। ये वो तलवार है जो मुंह से निकलती है, Amen. और इन सितारे हैं। अब ये 3 सितारे हैं, इनके मैं नाम बताता हूं आपको। अब देखें, जो सरपंच सीड नहीं ना मानता, वो सितारे पढ़ के देखे, जो सरपंच सीड नहीं God मानता, bless you. सितारों के अंदर सरपंच सीड भी लिखी हुई है। देखें, जो कुछ बाइबल में हुआ तो सितारों में लिखा था ना, Amen. तब सरपंच सीड भी बाइबल जो थी वो सितारों के अंदर लिखी हुई है। नहीं कोई मानता तो ना माने, सितारे तो पढ़ के देखे। Amen. ये देखें, और मजे की बात, ये नाम किसी बिलीवर ने नहीं दिए, ये नाम बिलीवर ने नहीं दिए, ये नाम एस्ट्रोलॉजर्स ने दिए हैं, जो तारों की इल्म को जानते हैं। वो क्यों कहते हैं, अच्छा जी ए फलाना साल आएगा, ते साल दे विच ए बीमारी आएगी, अगला साल आएगा, ए साल बड़ा तरक्की दा साल होएगा, तुम्हारा सितारा आजकल है, वो कहते हैं ना तेरे आजकल सितारे बड़े गर्दश ने, तेरा सितारा बड़ा आज उठा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सितारे आपके बाइबल के अंदर वर्षित है। Amen. ये अपने वक्त के अंदर थी, Yes. ये अपने वक्त के अंदर थी, हमें जरूरत नहीं है इनको पढ़ने की। इनको पढ़कर कुछ बना दिया गया वो मिस्र के पिरामिड्स, Amen. और जो मिस्र के पिरामिड्स को देखकर ये बाइबल लिखी जाती है। अब हमारे पास रिटन फॉर्म के अंदर बाइबल है। हम देखेंगे कि खुदा कल, आज, बल्कि है। ये जो जी सितारा है, ये वाला स्टार, आपने सिर्फ सितारे चिट्टे रंग नहीं देखे हैं चमकते हुए। थोड़ा सा आप ऊंचाई पे चले जाएं, किसी का कलर ब्लू है, किसी का कलर ऑरेंज है। जब आप जाए ना ये कलाम बड़ी बड़ी साइड पे या ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो आप रात को देखें तो आपको सितारे कलरफुल दिखाई देते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। Yes. ये हमें दूरी की वजह से सिर्फ एक रोशनी सी नजर आती है, लेकिन जब इनकी करीब जाते हैं, तो आपने आसमान के ऊपर कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखना शुरू कर दें। जब आप लेते होंगे, एक मैं अक्सर होता है, कोई अपना नाम बना रहा होता है, ठीक है,
جب ہم نے چھٹی کلاس کے اندر جب ہمیں یہ پڑھائے گئے ستارے تو ہمیں ٹیچر نے بولا جا کے گھر لے جانا اور آسمان پر شیر بنانا اپنے نام کے اسپیلنگ. انہوں نے لیسن سمجھانا تھا, پڑھانا تھا, انہوں نے ایک ہمیں ٹاسک دیا. ہم گھر ہے, ہمیں فروغ بنتا نظر آ رہا ہے, لوئن بنتا نظر آ رہا ہے, ہمیں ہنوک نظر نہیں آتا تھا, ہمیں خدا میں یسوع مسیح دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس نہیں تھا. جب ہمارے پاس آیا انہوں نے کہا ڈڈو تے چھیر لو کی ضرورت نہیں ہے, کہ خدا بھی موجود ہے. ادھر سب کچھ موجود ہے, ادھر سب کچھ موجود ہے. ادھر قائم بھی آئے گا نظر آپ کو, ادھر حابل بھی نظر آئے گا, ادھر سید بھی آئے گا, ادھر نوس بھی آئے گا, مہلیل بھی آئے گا, اس کے اندر ہم سب بھی آئیں گے. آمین. لیکن اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر لیں, آئیں گے سارے, لیکن ہم کس کیٹیگری کے اندر آئیں گے یہ آپ کی چوائس ہے. آمین. یہ ستارہ ہے, اس کا نام ہے آلنی تک. ستارے کا کیا نام ہے؟ آلنی تک اس کا نام ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو کچلا گیا ہو, جس کو کچلا جائے. آسان لفظوں کے اندر سیکریفائس, قربانی. آلنی تک. اب بائبل پڑھ رہے ہیں نا ستاروں کے اندر, یہ فارم تھی جس کے اندر ہنوک بائبل کو پڑھتا تھا. ہنوک نے بائبل کو پڑھا اور اس نے آلنی تک, اسے پتا تھا ہنوک فوکس کس پہ ہے. ہنوک کا سارا فوکس ریسٹوریشن کے اوپر ہے, بحالی کرن کے اوپر ہے, بحالی کے اوپر ہے. اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جو باغ عدن میں ٹوٹا ہے اس کو بحالی کی طرف وہ سوچ رہا ہے. اس کو پتا ہے کمپل نکلے گی, اسے پتا ہے ایک آئے گا, وہ اس کی آڑی ایڑی پر کاٹے گا, لیکن وہ اس کے سر کو کچلے گا. ٹھیک ہے, میں سانپ کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا. تو وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا, لیکن جو آنے والا ہے, جو ریڈیمر ہے, جو قائد میں ریڈیمر, جو چھڑانے والا, کرافٹی ہے والا, وہ جو مسپیس کو بحال کرنے والا, وہ جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ, وہ جو میری نجات اور آپ کی نجات خریدنے والا, وہ جو میرا اور آپ کا نجات تقسیم, وہ جو میرا اور آپ کا پربھو یسوع مسیح, وہ جو میرا اور آپ کا اورائن, وہ جو میرا اور آپ کا خداوند, وہ جو میرا اور آپ کا برسرا کیا ہوا برا, وہ جو میرا خداوند, میرا ریڈیمر, میرا چھڑانے والا, وہ پربھو یسوع مسیح آئے گا اور اس کی ایڑی پر کاٹا جائے گا اور اس کے ساتھ کو کیا کرے گا؟ کچلے گا. یہ ہو گیا آلنی تک, سیکریفائس, یعنی کوئی قربانی ہوگی, کوئی برا آئے گا. آمین. اس کے بعد آتا ہے یہ نیچے آتا ہے آلنیم, ALNIAM, آلنیم. آلنیم کا مطلب ہے جس کو پاؤں سے پیسا یا کاٹا یا مارا یا رگڑا گیا ہو, پاؤں سے کچلا جانا, روندا جانا. یہ کون ہے روندے گا؟ کون ایڑی کو اس کی ایڑی پر کاٹے گا, سر کو کون کچلے گا؟ آلنیم. This is the attribute of Jesus Christ. یہ خدا بھی یسوع مسیح کی ایک خصوصیت ہے کہ سانپ کے سر کو کچلنا. Understand? سمجھ لگ رہی ہے؟ دوسرا جو ہے یہ ہے منتا کا. کیا ہے؟ منتا کا ہے. اس کا ہے اس کا مطلب ہے قربانی, مطلب دینا, سیکریفائس کرنا. اور یہ دینا کچھ سیپریٹلی نہیں, یعنی میں اگر قربانی دیتا ہوں, میں تو لیلا چکا تو میں لیلا دے رہا, ایسا نہیں ہے. یہ ایسی قربانی ہے جس میں اپنا آپ دیا جائے. اس قربانی میں ڈفرنس ہے. سیکریفائس اگر دیکھیں تو یہ ہے اپنے آپ کو دے دینا. اس ستارے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیا کرنا؟ دے دینا. یہ کس نے دیا؟ اپنے آپ کو ہمارے لیے کس نے دیا برادر؟ کس نے دیا؟ یسوع مسیح نے دیا. اس کے بعد آ جاتا ہے یہ تلوار ہے, اور یہ تلواروں کے اندر اس میں M4 ہے, M4 ہے اور ایک برائٹ سٹار ہے. اس میں سے 2 ستارے مدد ہیں, لیکن ان میں سے بہت زیادہ چمکتا ہوا ستارہ ایک ہے, وہ جو نیچے والا ہے. اور جو اس میں سے جو سب سے برائٹ سٹار ہے, اس کا مطلب M4, مطلب جو اس کا نام ہے اس کا مطلب الگ ہے. ایک کمپل نکلے گی, ایک کمپل نکلے گی. کہاں سے؟ یسی کے گھرانے. یہ سب سٹار کی صف کو ڈیفائن کر رہے ہیں
रिस्टोरेशन को, आमीन, बहालीकरण को, आमीन, दोबारा उस बागेदन की तरफ लौटने के लिए, दोबारा उस खुदा की रफाकत के अंदर जाने के लिए। और ये सब कुछ कर कौन रहा है? ये खुदा खुद ही कर रहा है। और इसने सारे मिस्ट्री, सारे बेट किस फॉर्म के अंदर रखे, सितारों की शक्ल के अंदर रखे। इसमें से एक सितारे का मतलब कॉम्बल निकलना है और एक सितारे का मतलब है तब। अब ये देखें, ये हो गया बेल्ट, कुरान बेल्ट हो गई। ये तो सारी चीजें हैं जिसमें वो नजात खरीद रहा है, जिसमें वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं और शैतान के सर को कुचल रहे हैं। लेकिन ये तलवार मोहब्बत की नुमाइंदगी नहीं करती। तलवार मोहब्बत की नुमाइंदगी नहीं करती। तलवार जो है वो सेपरेशन पैदा करती है। तलवार काटती है, तलवार अलग करती है, तलवार न्याय को लेके आती है, जजमेंट को लेके आती है। और इसका जो एक मतलब है वो जी कोम्पल का निकलना, और जो सेकंड स्टार है इसका मतलब है सफेद तख्त। इसका क्या मतलब है? सफेद तख्त, व्हाइट थ्रोन ऑफ जजमेंट, अदालत का सफेद तख्त। ये वो था जिसके सामने नबी खड़ा होना पसंद नहीं करता। कहता है मुझे रहम चाहिए, मैं फजल के वसीले से बचाऊं, मैं कभी भी खुदा के तख्त के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम वर्दी नहीं है, हम इस काबिल नहीं है कि उसकी अदालत के सामने खड़ा हो सके। नबी कहते हैं मेरे अंदर बरूद भर के मुझे जला दिया जाए, मुझे यारों में से काटा जाए, लेकिन मैं इस सफेद तख्त के सामने खड़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। उसके जब मुंह से निकलती हुई तलवार के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके मुंह से निकलते हुए वचन कईयों को तो मुजरिम ठहराएंगे, लेकिन कईयों के लिए वो जिंदगी की बातें हैं। कईयों के लिए तो वो लानत है, लेकिन कईयों के लिए वो जिंदगी का बाइस बनेगी। और कई बातें, इनमें से एक ये हो गया कोपल, सॉरी, इसमें से जो ब्राइड है, ये जो तीसरा सितारा है, इसका मतलब है, पंजाबी में बताऊंगा, ओ पैर, यानी ओ पैर जिहड़ा कुचल देंदा है, जिसे मुकाशफा की किताब के अंदर बोला गया उसके पांव पीतल की मानिंद है। ये जजमेंट है। ये जो तीन सितारे हैं ये हमें थ्रोन ऑफ जजमेंट के बारे में बता रहे, नेहादीश के बारे में। इसी में उसके सफेद बाल है, इसी के उसके सीना बंद है, इसी के उसके कमर बंद है, इसी के उसके पांव पीतल की मानिंद है, उसके मुंह से एक दो धारी तलवार निकलती है, उसकी आंखें शोला की मानिंद है। और नबी कहते हैं कि ये मोहब्बत वाली कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। ये सब बातें रिप्रेजेंट कर रही है एक अदालत को। और एक हुण शैतान दा पैर नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह दा पैर। ओ पैर जिहड़ा कुचल देंदा है, ओ पैर जिहड़ा चकनाचूर कर देंदा है, ए ओ हाथ है, ए ओ पैर है जिहड़ा वधे ते शैतान दे ओ जिन्ने भी चकमक दी चढ़ाना होण, जिन्ने भी पुख्ता इरादे होण, चाहे ओ फराउन दा दिल क्यों ना होए, चाहे ओ सख्त दिल क्यों ना होए, ये जो पैर आंदा है ये चकनाचूर करदा है। हाथ भी आता है और वो लिख जाता है, और वो लिख के उनकी जुबान में नहीं जाता, वो लिख के किसी और जुबान के अंदर चला जाता है। हमारे जुबान के अंदर भी बात उतरी, लेकिन किसी और जुबान के अंदर, और फिर उनको समझाने के लिए नबी आता है। इस बात को समझ लगी? उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, उन्होंने हैकल के बर्तनों के अंदर शराबें पी, उनकी जुबान के अंदर खुदा ने बात क्यों नहीं की? उनकी जुबान के अंदर बात क्यों नहीं की? ताकि कोई नबी आकर समझा सके बात। अगर खुदा खुद ही समझाने लगे तो नबी की जरूरत ही नहीं है। खुदा का पैटर्न नबी भेजना है। आमीन। खुदा पहले मिस्ट्री पैदा करता है, खुदा पहले मिस्ट्री बनाता है। खुदा ने अराबे मिस्र की मिस्ट्री को बनाया, खुदा ने इस पिरामिड को बनाया और इसको भेज रखा ताकि सिर्फ मेरे लोग जान सकें। अगर ये पिरामिड मिस्ट्री ना होती तो सब जान जाते, अगर ये बाइबल भेद ना होती तो सब जान जाते। और खुदा ने इसे पशीदा रखा। खुदा ने दानियल को कहा बंद रख, खुदा ने कहा बंद रख, तेरे वक्त की बातें नहीं है। खुदा ने कहा एक आएगा, और वो कहता आज आएगा, खुदावंद यहाँ पे मौजूद है, खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। मैं महसूस कर सकता हूँ, क्या आप में से कोई महसूस कर सकता है?
موجود ہے. اب دیکھیں جی، یہ تھا ستاروں کی شکل کے اندر بائبل کا لکھا جانا. آمین. اب فار ایگزامپل بھائی ندیم کی ایگزامپل ہے. انہوں نے ایک پینسل پکڑی ہے، ایک ڈائری ہے ان کے پاس، اور جو میں یہاں سے بتا رہا ہوں ان میں سے کچھ پوائنٹس لکھ رہے ہیں. یعنی میں یہاں سے اسپوکن ورڈ بول رہا ہوں، یعنی منہ سے نکلی ہوئی باتیں، اسپوکن ورڈ، بولا گیا کلام، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے لکھ رہے ہیں. اسے کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اسی طرح حنوک نے بھی کیا. اسی طرح حنوک نے کیا. حنوک نے کیا کیا؟ اسے وہ بلا نہیں کرتا تھا، اس کی اٹریکشن ہی ستاروں کے ساتھ تھی. وہ جو خدا کے ساتھ چلنا بلا کیا تھا؟ وہ خدا کے ساتھ چلتا. خدا کیا ہے؟ کلام ہے. کلام ہے. وہ کلام کے ساتھ چلتا تھا. وہ کلام پڑھتا کدھر سے تھا؟ آسمان کے ستاروں میں. اور پھر اپنے نوٹس بناتا تھا. آمین. نوٹس بناتا تھا اپنے نوٹس سے کس نے بتایا؟ پیرامڈس. آمین. یہ پیرامڈس یہ حنوک کے ریکن فارم کے اندر نوٹ چھوڑ کے گیا. یہ اپنے نوٹس چھوڑ گیا. اس کا مطلب جو کچھ حنوک نے آسمان کے اندر ستاروں کی شکل کے اندر سیکھا، اس نے ہمیں پیرامڈس کے اندر بنا دیا. اب آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں، حنوک نے کیا سیکھا، اب وہ پیرامڈ کو پڑھیں گے. اچھا پیرامڈ بھی پڑھا جاتا ہے، یہ پتھر بھی پڑھے جانے ہیں. ہم اب ان کی طرف پڑھتے ہیں. سمجھ لگ رہی ہے سب کو سمجھ لگ رہی ہے؟ گاڈ بلیس. خدا اللہ کو سب کو بڑی برکت دے. یہ ہے وہ پیڑھی جو ایک خاص قسم کی پیڑھی تھی. سمجھ لگی ہے؟ یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ بھید جو کھلے ہیں. لوگوں نے صرف اسے سمجھ لیا ایک عام سی باتیں ہیں، بس ہوئی نہیں پوری ہوگی. سنڈے کو آئے چرچ اٹینڈ کیا، بس ختم. اچھا پوائنٹ میرے ذہن کے اندر ایک بات تھی، آپ میں سے کون فیملی میٹنگ کرتے ہیں؟ جو نہیں کرتے نبی میں لگے گا تھے ان کا رپچر ہی نہیں. رپچر نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے رپچر چلا جائے گا. چھوٹی چھوٹی بات. نبی کہتے ہیں کم ٹو دا فیملی میٹنگ. نبی گیت گاتے ہیں کم ٹو دا فیملی میٹنگ. آؤ فیملی میٹنگ کی طرف آؤ. کیوں؟ نبی کہتے ہیں وائی؟ کیونکہ خدا وہاں پہ آپ سے ملاقات کرنا ہے. حنوک بھی فیملی میٹنگ کرتا تھا برادر. اس کی فیملی ستاروں کی فون کے اندر وہ دیکھ رہا تھا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ لوط ہوگی، یہ ابراہیم ہوگا، یہ نوح آئے گا، یہ یسایہ آئے گا، یہ دانیل آئے گا. یہ سارے وہ بھید وہ کہاں پہ پڑھتا تھا؟ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتا اور ایک میٹنگ کرتا تھا. وہ رات کو لیٹتا اور وہ سوتا نہیں ہوگا، وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور ستاروں کو دیکھ رہا ہوگا. ایک دن اس کو کرسپی سمجھ لگ گئی. ایک وقت ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اچانک آپ کے اوپر ایک بھید کھل جاتا ہے. اب جب اس کے اوپر بھید کھلا وہ غائب ہو گیا، اٹھا لیا گیا. یہ تھا حنوک کا خدا کے ساتھ چلنا. ہمیں سمجھا صرف حنوک خدا کے ساتھ دعا کرتا ہے 15 منٹ. نہیں، ایسا نہیں ہے. 15 اور 20 منٹ کی دعاؤں سے ریپچر نہیں ہوتا، نہیں ہوگا. فیملی میٹنگ بڑی ضروری ہے. فیملی میٹنگ جو نہیں کرتا نبی کہتے ہیں اس کا ریپچر نہیں ہے. آپ کے بچوں کا بگڑنا، آپ کے گھروں کا تباہ ہو جانا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے فیملی میٹنگ نہیں ہے. فیملی میٹنگ نہیں ہے. اور یہ سب سے افسوسناک بات ہے. لوگوں نے اس کی پرائرٹیز کو نہیں بتایا. مشنری تنظیمیں اس کی قدر نہیں پہچانتی. مشنری تنظیمیں اس کی اہمیت نہیں جانتی کہ فیملی میٹنگ کتنی ضروری ہے. دیکھیں آسان سی بات، خدا نے کہا مذبح بناؤں گا. یسایہ 19 بات پہ پڑھا مذبح ہوگا. مذبح پر کیا ہوتا ہے؟ خدا آتا ہے، خدا بات کرتا ہے. گھروں کے اندر جب مذبح ہی نہیں ہے تو خاک ریولیشن پتہ چلنے گا، بھید خاک پتہ چلنے گا، بے بدلاؤ کا تجربہ ایوی ہو جانا. اس سے پہلے فیملی میٹنگ میں آنا پڑے گا. یہ بڑی ضروری ہے. اور جو یہاں پر ہیں موجود ہیں، دیکھیں خداوند جانتا ہے
अगर यहाँ पर मैंने मैसेज दिया, अगर एक फैमिली मीटिंग करना स्टार्ट हो जाती है तो ये मैसेज सक्सेसफुल है। अगर यहाँ पर एक जिंदगी भी बच जाती है ना, इन रेवलेशंस को कैच कर लेती है। देखें ये वो बातें हैं जो इस प्रॉफिट को यूनिक बनाती है। ये वो बातें हैं। देखिए दुनिया के अंदर बड़े नबी आए हैं, बड़े बड़े उलमा कराम गुजरे हैं, बड़े बड़े नॉलेज एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट वाले बड़े बड़े गुजरे हैं, लेकिन ये ऐसा कोई नहीं है। खुदा मुझे सुन यस खुदा हमारे दरमियान आमीन और हमने उसका जलाल देखा, आमीन ऐसा जलाल जैसे आमीन देगा। खुदा मुजस्सम हुआ, यस हमारे दरमियान रहा, हर जमाना के अंदर वो मुजस्सम हुआ। आमीन आमीन और हनूक ने अपने नोट्स बनाए, पॉइंट बताते हैं, हनूक ने अपने नोट्स बनाए किसकी फॉर्म के अंदर? पिरामिड्स में पिरामिड की शक्ल के अंदर। अब नोट्स बनाए, पिरामिड बनाया। जिसके ऊपर वो सितारे अलाइन हो रहे हैं। ये देखें, अब मजे की बात, इंटरेस्टिंग यहां से चीजें शुरू हुई। हनूक की बेसिकली जिंदगी क्या है उधर? हनूक ये पिरामिड बनाए उसने, ये पिरामिड साइंस से ये तस्दीक शुदा बातें हैं, ये अलाइन करते हैं और अलाइन बेल्ट को अलाइन यानी फॉर एग्जाम्पल वैसे आसान चीजों में आसान, आपने जी रखा ये अपना घर बनाया और आप कहते हैं जी बिल्कुल इसके ऊपर एक सितारा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चर्च है, या बिल्कुल इसके ऊपर क्रॉस होनी चाहिए, यानी ये क्रॉस अगर इसमें से खत्म कर दें, ये इसका कनेक्शन, ये क्रॉस अलाइन कर रही है इस पॉइंट को, इसको इस पॉइंट को क्या कर रही है? अलाइनमेंट। बतेरे इस चीज को समझते हैं, गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, अगर उसकी अलाइनमेंट खराब हो ना तो वो इधर उधर जाती है, वो एक स्मूथली ड्राइव नहीं हो सकेगा आपसे। अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर मोटरसाइकिल का हैंडल चैनल डिंगा होए तो मुश्किल होती है चलाते हम। इसी तरह जब तक आपकी अलाइनमेंट नहीं है इन सितारों के साथ, जब तक आपकी इन मिस्ट्रीज के साथ अलाइनमेंट नहीं होगी, जब तक आपकी अलाइनमेंट इस आवाज के साथ नहीं होती, आप कभी भी लेक्चर के भेद को समझ नहीं सकेंगे। हनूक का उठाया जाना कोई सादी सी बात नहीं है। हनूक का उठाया जाना एक मिस्ट्री है, एक ऐसी मिस्ट्री जो हम सब के लिए खुली हुई। आमीन। अब देखें अलाइनमेंट समझ लग गई। अब जहां पर उसने आराम मिस्र बनाए, बिल्कुल उसकी ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर जो तीन अराम है, उन तीनों अरामों के ऊपर जो हमने ओराइन बेल्ट देखी, जो ये देखें, ये जी खुदा यीशु मसीह है जो बाइबल के अंदर सितारों के फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। उसके हाथ के अंदर एक तीर है, कमान है, उसके इधर एक हमने वो तलवार देखी जैसे पीछे, और हमने यूहन्ना के जब पढ़ते हैं मुकाशवा के अंदर, और मैंने आदमजात सा एक शख्स देखा, उसके दाहिने हाथ के अंदर क्या थे? और ये ओराइन के दाहिने हाथ के अंदर बोला क्या? प्लेटिस। प्लेटिस होता है 7 सितारों का झुरमट। प्लेटिस क्या है? 7 सितारों का झुरमट। और 7 सितारे, अगर प्लेटिस देखे ना यूट्यूब से या आप गूगल से उसकी पिक्चर देखें, उनके अंदर 7 सितारे हैं। और कलाम में क्या लिखा कि वो 7 सितारे 7 जमानों के क्या है? 7 कलीसियाओं के क्या है? रिश्ते हैं। मजे की बात, इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो प्लेटिस है ना, उसके सारे सितारे चमकते नहीं है, इतने शाइन नहीं करते, उसमें से एक सितारा बहुत ज्यादा शाइन करता है, और वो मिलर विलियम ब्रैनम। बाइबल सितारों की फॉर्म, ये थी वो बाइबल जो हनूक पढ़ता था। और हनूक ने अपने नोट्स बनाए, यहां से पढ़ता था, यहां पर बनाता था, यहां से पढ़ता था, यहां पर बनाता था। आप समझ रहे होंगे
पिरामिड जे भाई जाते हैं खंबे जिहड़ियां सतून जे है नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ बाइबल लिखी है पता है इसमें बाइबल लिखी हुई है कैसे लिखी है वो अब हम देखेंगे चंद एक बातें हैं हम देखें इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए ठीक है मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता था मेरे अंदर जो तरीक थी कि सिर्फ हम उस बात की तरफ फोकस कर सकें आया कि ये बातें किस चीज़ की तरफ डिनोशन करती हैं अगर ये आप देखें हम में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस पिरामिड को देखा ही नहीं था ऐसी बात है यानी हमारे जमाने के अंदर जो खुले हुए बेन हमें पता तो चले हम कहते हैं हनूक उठाया गया कैसे उठाया गया पता तो चले हनूक इस तरह उठाया गया और जब वो सितारों को पढ़ता था सितारों में बाइबल को पढ़ता था नबी कहते हैं कि हनूक ने जो बाइबल लिखी फिर उसने पिरामिड्स के अंदर बाइबल लिखी वो पिरामिड्स के अंदर रिटन फॉर्म के अंदर बाइबल क्या थी वो निकाले जिसके अंदर वो सारी है बातें जी ये थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ये अब आपको थोड़ा सा उलझ गए होंगे कि कोई नक्शा लग गया को समझ लग रही है किसी को इसकी समझ लग रही है देखिए इसे जरा थोड़ा सा देखें और इसी तरह तो वो अभी देखें पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं हनूक भी एक दिन अब देख रहे हैं ये पिरामिड हनूक भी सितारों की तरफ देख रहा था वो कंटिन्यू गेज कर रहा था देखता जा रहा था और वो देखता उसे फेस समझ लग गया उसको बड़ा रिलेशन अब इसी तरह हम इस पिरामिड को देख रहे हैं लेकिन अचानक से पता चलेगा अचानक से रेवलेशन खुलेगा कि यहाँ से ये है जी क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड या आदम नस्ल इंसानियत का तख्लीक होना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसमें वो दिखाए जिसके अंदर जी वो सारी है जो इसका नक्शा है अंदरूनी जो हिस्सा है इसका नजर आ रहा है सबको मुझे लगता है ये नजर नहीं आएगा थोड़ा सा विजिबल है आपको ताकि थोड़ी सी ऑफ करेंगे तो बस हम करीब जा रहे हैं हम इन बातों के करीब समझ लग रही है सबको किसको समझ नहीं लग रही अगर नहीं लग रही तो हम कोई मसला नहीं है कोई बात नहीं है मैसेज पढ़ा करें जिसको समझ नहीं लग रही ना वो मैसेज पढ़ा करे अब थोड़ा सा विजिबल हो गया अच्छा अब बाइबल पढ़ते हैं अब हमने पहले बाइबल सीखी किसकी फॉर्म के अंदर सितारों में गॉड ब्लेस यू ब्रदर अच्छा हमने पहली बाइबल किस फॉर्म के अंदर सीखी सितारों की फॉर्म अब जो वो बाइबल को पढ़ के जो बाइबल लिखी गई अब हम उस बाइबल को पढ़ेंगे हमने तो ये सिर्फ 66 किताबों वाली बाइबल देखी है ब्रदर नबी हमें नहीं कहता था नबी कहता था अगर रिकट फॉर्म के अंदर बाइबल ना होती तो मैं खुदा को ढूंढ लेता उसे इधर से मिलना था खुदा नबी को यहां से मिलता था ये है वो बातें ब्रदर जो दुनिया से पोशीदा है जिनको दुनिया समझ नहीं पाई उन्होंने सिर्फ ये नबी को देखा लोग हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और जो विलियम ब्रानम नबी कहते हैं क्यों ना कहे ब्रदर क्यों ना कहे जो बातें साइंस नहीं समझ सकी वो मिस्ट्री ऑफ क्लाउड साइंस नहीं समझ सकी ऐसी बातें जो साइंस ना समझ सके ब्रदर साइंस खत्म तो ना हुई फिर कुछ सुपर नेचुरल भी है कुछ मखलूकल फितरत चीजें भी है साइंस कहती है एडे एडे भारे पहाड़ सन एडे एडे भारे पत्थर सन कोई उसके दौर के ਵਿੱਚ कोई एडी हैवी मशीनरी नहीं सी जे कोई ऐसी पुली या कोई ऐसा कांसेप्ट ही नहीं था तब जब ये पिरामिड्स बने ये कैसे बने ये हनूक ने बनाए अब देखें इसके दो एंटर करने के रास्ते थे कितने रास्ते हैं दो रास्ते हैं ये देख रहे हैं आप ये एक ये देख लें हम ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन जा रही है नीचे की तरफ सॉरी ये देख लें लाइन नजर आ रही है आपको ये जो डॉटेड लाइन है ये है जी नीचे की तरफ जा रही है यहां पर हम कुछ चीजें सीखेंगे अब ये मिस्र के अंदर जो बना हुआ है बेसिकली मिस्र के अंदर कमरे भी हैं जो पिरामिड्स है ना पिरामिड्स के अंदर कुछ कमरे हैं एक बोला जाता है यहाँ पे ये जी नीचे है ये एक घर टाइप है एक
कमरा टाइप है, इसे बोला जाता है क्वीन चैम्बर। क्या बोला जाता है इसे? क्वीन चैम्बर। क्वीन कौन होती है? मलका। मलका का कमरा। और मलका कहाँ जाती है? किंग चैम्बर के अंदर। अब हर दुल्हन जो पत्नी बनना चाहती है, जो वाइफ, दुल्हन और पत्नी में डिफरेंस है, ठीक है, आप समझते हैं इन चीजों को। अब देखिए, हर वो जब तक वो अपने बादशाह के कक्ष के अंदर, यानी उस कमरे के अंदर, उस महल के अंदर, उस चैम्बर के अंदर नहीं जाती, तो वो उसकी पत्नी नहीं कहलाती, बल्कि सिर्फ वो उसकी दुल्हन या मंगेतर कहलाएगी। आमीन। अब ये है दी क्वीन चैम्बर, ये है किंग्स चैम्बर। ये रास्ता देख ले, ये थोड़ा सा, एक ये रास्ता है, ये रास्ता और ये रास्ता। जब आप मिस्र के एंट्री दरवाजा के अंदर से बढ़ते हैं, तो एक ऐसा रास्ता है जो कुशादा है। जो क्या है? जैसे कि आप इन लाइनों की अलाइनमेंट से देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी खुली लाइन है, ये जो थोड़ी सी लाइन है, ये तंग सी लाइन है, ये नैरो लाइन है। और खुदावंद ने क्या कहा? एक ऐसा रास्ता है जो चौड़ा है और जिस पर जाने वाले, पहले तो उसने रास्ता डिसाइड किया अनूख ने। पहले उसने क्या किया? रास्ता कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। ये रास्ता नीचे की तरफ चला जाता है। इधर एक शाफ्ट थी, टॉम जिसे बोला जाता है। यहाँ पर नीचे साइंसदानों ने रिसर्च की, जब वो नीचे के इलाका में गए, तो यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल पाई गई, बहुत ज्यादा स्मेल पाई गई, बहुत गंदगी थी यहाँ पर। और देखे, सबसे पहले एक रास्ता चौड़ा और एक रास्ता तंग है। वो जो तंग रास्ता है वो बादशाह के कक्ष की तरफ जाता है, जो खुला रास्ता है वो पाताल की तरफ जाता है। तो सबसे पहले तो हनूक ने रास्ता डिसाइड किया। उसे पता था दो रास्ते हैं, एक रास्ता चढ़ा और एक रास्ता सुकड़ा है। हम तो सकरे पद के राही हैं, हम तो सकरे पद के रही हैं, हम तो यीशु मसीह के गवाह हैं। हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा जो चुनाव है, वो खुला रास्ता नहीं है। नबी को किसी ने स्टड्स गिफ्ट किए और उनके अंदर वो जब किधर गया था? डैनी हिंदरी ने किए। और डैनी हिंदरी जब खुदा यीशु मसीह को जिस जहां पर रखा गया, वहां से उसने कुछ पत्थर लिए और पत्थर के अंदर एक बारीक सी लाइन थी। और जब उसे मतलब छूने का पत्थर था, आई थिंक सो, और जब उसे उसके ऊपर तेजाब या कोई ऐसा नबी ने बताया कि उसे डाला जाए तो वो रेड हो जाता था, लाल हो जाता था। और नबी कहते हैं कि उसके अंदर एक बारीक सी लाइन थी। और याद है आपको क्या, जब नबी पुलपट के ऊपर थे तो एक फ्रांसीसी औरत उठी और उसने गैर जुबान बोलनी शुरू कर दी। और उसने जब गैर जुबान बोलनी शुरू की, तो वहां पर एक और शख्स था जो फ्रांसीसी जुबान समझता था, और उसने अपने नोट डाउन कर ली वो बातें जो उस औरत ने बोली थी। और वहां पर एक और शख्स भी था, दो गवाह वहां पर मौजूद थे जो फ्रांसीसी जुबान को समझते थे, फ्रांसीसी जुबान को समझने वाले मौजूद थे। और उसका तर्जुमा कुछ इस तरह था, जिसने तर्जुमा किया कि विलियम ब्रैनम ने वो रास्ता चुना है, कि तूने वो रास्ता चुना है जो टुकड़ा है। इसका मतलब ये जो 7 अक्षर वाला नबी था, इसने भी टुकड़ा रास्ता चुना। ये जो 7वीं पुष्ट के ऊपर था, इसने भी टुकड़ा रास्ता चुना। आमीन। बाइबल समझ लग रही है? और हमें मिस्र के अंदर बाइबल है, बाइबल मौजूद है। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर मैनकाइंड, यहाँ पर आदम पैदा हुआ। ये देखिए, यहाँ पर आदम बनाया गया, कुछ यहाँ से गुजरा, यहाँ पे एक सेकंड पोर्शन आ जाता है, यानी इसके पोर्शन है कुछ, यानी यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम होगा। आदम के बाद सेकंड मैनकाइंड जो था, जब इब्राहिम को पैदा किया गया, जो बादशाह खुदा ने इब्राहिम से बांधी थी, ये बोला आ जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, फिर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है। और वो सेकंड कमिंग के अंदर आता है, अपनी दुल्हन को इस बादशाही कक्ष के अंदर लेकर जाना चाहता है, इस महल के अंदर, जो हम कहते हैं आसमानों में मेरा भी एक मकान है, आसमान के अंदर मेरा भी एक मकान है। अब मजे की बात, अब देखें, ये जो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये पिरामिड्स है। ये पिरामिड की शक्ल क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल नीचे 10 पत्थर है, ये देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर 6 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये पिरामिड बन है, समझ लगी? इसी तरह
ये पिरामिड बन रहे हैं। और आपको बताता हूं कि ये जितने पत्थर हैं इनकी तादाद अब देखिएगा। हम दुल्हन जानती है कि तादाद नंबर्स क्या करते हैं, नंबर्स बड़े खास हैं, नंबर्स बड़े खास अहमियत क्या मिले रेवलेशन को समझने के लिए। ये जो जिसने मिस्र के अराम को कवर अप किया हुआ है, ये कितने पत्थर है पता है आपको? ये 1,44,000। ये कितने पत्थर है? 1,44,000 पत्थर है। ये काउंटिंग किधर से मिली हनूक को? किधर से मिली? ये सितारों से पढ़ता था वो बातें, सितारों से सीखी उसने। थोड़ा सा फील हुआ, थोड़ा सा लगा कि कुछ है। और यहाँ पे जो किंग्स चैम्बर है ना, ये किंग्स चैम्बर रोज, मैंने जो रोज समझाई, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, सातवीं रो, रोज। और जो किंग्स चैम्बर है ये पता कितने रोज में आता है? 50वीं रो के अंदर। 50 साले यूबली, 50 पेंटिकॉस्ट, रूह कुदस मिलेगा तो इस बादशाह के कक्ष में जाओगे और नहीं बढ़ पाओगे, कैसे नहीं जा पाओगे। ये है वो तीसरा कमरा, ये है वो थर्ड फेज जहां से बादशाह अपनी दुल्हन से मुलाकात करता है। और ये किसकी, इसकी अलाइनमेंट कहां पर आई है? 50वीं रो के अंदर। ये 49वीं रो के अंदर क्यों नहीं आई? और इसके अंदर एक ग्रेट गैलरी है। ग्रेट गैलरी ये यहाँ से गुजरती है, यहाँ से आप देख लें, ये एक गैलरी है, ये विजिबल नहीं है। इसके अंदर 7 रोज हैं, 7 स्टेप्स हैं, 7 सीढ़ियां इसमें। और देखें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और यहाँ से ये पिक्चर सिर्फ अंदरूनी रास्ते के एंट्रेंस को डिफाइन कर रही है। एक पिक्चर है जिसमें यहाँ से एक शाफ्ट आती है जहाँ से वेस्ट आता था और वो वेस्ट नीचे के इलाका में उतर जाता था, यानी पताल के अंदर, यानी जमीन के अंदर चला जाता था। और ये 30 AD के अंदर जो एक कुछ पिक्चर्स ऐसी है जिसमें नबी ने इन्हें डेट्स की बात से डिफाइन किया हुआ है। और देखिए 30 AD के अंदर क्या हुआ था? 33 AD के अंदर क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह नीचे के इलाका में उतरा, ठीक है, नीचे के इलाका में उतरा, वो ऊपर चला गया, फिर वो उसकी फर्स्ट कमिंग है, सेकंड कमिंग है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है मेरे से अच्छे तरीके से डिफाइन ना हो पाए, लेकिन ये सारी बातें इसने हनूक ने ये जो आप देख रहे हैं लाइनें लूने काटी हुई हैं, ये सारी बाइबल लिखी हुई है, ये बाइबल लिखी हुई है। आमीन। और हनूक ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया, सारे जबरदस्त काम था। उसने इसका चोटी का पत्थर नहीं बनाया, चोटी का पत्थर नहीं बनाया। इसके पीछे मिस्ट्री है, क्यों नहीं बनाया? वो जानता था कि चोटी का पत्थर मुबारक में रख दिया, वही कोने के सिरे का पत्थर। वही कोने के सिरे का पत्थर। उसे पता था कि एक कोने के सिरे का पत्थर आएगा, अभी नहीं इसके ऊपर प्लेस होगा, एक वक्त आएगा जब वो आएगा। जिसको उसने वाइन बैठ के अंदर देखा, एक कॉम्पल निकलेगी, वो कॉम्पल ही बेसिकली वो चोटी का पत्थर था। आमीन। ये कहां से पढ़ा हनूक ने पढ़ा उसे सितारों के अंदर, उसने अपने नोट्स बनाए पिरामिड्स के अंदर। और अगर बाइबल मौजूद ना हो तो हम पिरामिड्स के अंदर जाकर बाइबल को पढ़ सकते हैं। अमीन। अभी तो प्यार सारी होते देखता रहा ना पिरामिड्स नु देखता रहा, चक्कर किए। अच्छा, और बात, जो खुदा ने नक्शा बताया मूसा को पाक-तरीन मकाम का, और उसके अंदर कुछ खास कैटेगरी के पत्थर लगाए गए, और जो कुछ नंबर्स भी इनके मखसूस थे। इतनी नंबर में पाक-तरीन मकाम के पत्थर लगेंगे जी, ठीक है। पाक-तरीन मकाम की इतनी विड्थ होगी, इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी, ठीक है। और इस किंग्स चैम्बर की बात करूं तो इस किंग्स चैम्बर की अगर बात करें, इसमें एक मजबा था प्रॉपर हूबहू जिस तरह। अब देखें हनूक मूसा से बहुत देर पहले का, इसे कैसे पता चला जी पाक-तरीन मकाम होगा? और जो किंग्स चैम्बर है ना, अभी तक ये चीजें मौजूद है, ये पिरामिड मिस्र के अंदर मौजूद है, लोग इसे विजिट करने जाते हैं म्यूजियम के हिस्ट्री के तौर पर, अभी तक ये मौजूद है ब्रदर। ये कोई पुरानी बातें, ये कोई हिस्ट्री की बातें नहीं है, ये अभी मौजूदा बातें हैं। और जब लोग गुजरते हैं, एक कितनी है 1053 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां जी, इसे चढ़ के जाना पड़ती है। 1053 153 मछलियां, 1053 मछलियां। कुछ याद आ रहा है आपको? यस यस यस।
یہ مسٹریز ہے. آگے پھر اس کے بعد ایک گیلری ہے. گیلری کے اندر 7 سیڑھیاں ہیں. اگر آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھ جائیں آپ کبھی بھی کنگز چیمبر کے اندر نہیں جا سکتے. آپ پہلی سیڑھی کے اوپر چڑھ جاؤ کبھی بھی کنگز چیمبر کے اندر نہیں جا سکتے. آپ اگر آپ افسس کے کلیسیا کے زمانہ کے اندر ہے تو کبھی بھی آپ کنگز چیمبر کے اندر نہیں جا سکتے. آپ دوسرے پہ ہیں کبھی بھی نہیں جا سکتے, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ. لیکن جیسے ہی آپ 7ویں سیڑھی چڑھتے ہیں آپ کو ایک آگے رستہ ملے گا جو بالکل کنگز چیمبر کے اندر اترتا ہے. جو کنگز, اس کا مطلب یہاں پہ 7 کلیسیا زمانے ہیں, یہاں پر آپ کو ملے گی ساری باتیں. اور اگر آپ تھوڑا سا اور اس پہ ٹائم سپینڈ کریں آپ کو ڈیٹس نہیں ملیں گی. ریپچر کب ہوگا, کب ہوگا ریپچر, یہ ہے پیرامڈ. سمجھ لگی؟ یہ تھی وہ مسٹری. اور جو جیسے پاک ترین مقام کے اندر پتھر لگے تھے اور جس اس کا پتھر کا نام معافی چاہتا ہوں مجھے بھول گیا, اسی سیم کیٹیگری کا پتھر جو پاک ترین مقام کے اندر موسیٰ نے بعد میں آگے جو خدا سے دریافت کی, آگے جا کے جب ہیکل بنی ہے سلیمان کے وسیلہ سے, جب یہ چیزیں جسے نیند آ رہی ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے کہ جو پاک ترین مقام کے اندر جس قسم کے پتھر تھے اسی قسم کے پتھر ہنوک نے اس کے اندر لگائے تھے, اس کے اندر لگائے. اس کا مطلب ان ڈیٹیل وہ اسٹڈی کرتا تھا, ان ڈیٹیل. یہ اے بی سی نہیں ہے, یہ جو آج ہم کر رہے ہیں یہ اے بی سی نہیں ہے. اصل میں ہم نے تو میسج کا اے بھی نہیں پکڑا. یہ ہے میسج. میسج اتنا مسٹری فل ہے, میسج اتنا انٹرسٹنگ ہے, نبی کے سندیش اتنے انٹرسٹنگ ہے, اتنے انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ان کو جب دیکھتے 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 ریپچر ہو جاتا ہے. آمین. اب یہ دیکھیں جی, کیپ سٹون اس کا مسنگ ہے, 1,44,000 کی کورنگ ہے پتھروں کی, اور اس کے اندر جو اس کی پلیسنگ ہے پتھر کے ساتھ پتھر جڑا ہے, اس میں سے بلیڈ کیوں نہیں گزر سکتا, کیوں نہیں گزر سکتا؟ وہ ورسز ہیں مطلب, وہ آیتیں ہیں, وہ آیتوں کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ پتھر. اور آیت اور آیت کے درمیان سے کبھی بھی کوئی چیز گزر نہیں سکتی. آیتوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. ان کی پلیسنگ ہی مسٹری فل ہے. سمجھ لگی؟ اب اس کے اندر ایک گریٹ گیلری ہے. گریٹ گیلری کے 7 سیڑھیاں ہیں اور 7 سیڑھیاں کنگز چیمبر کی طرف جاتی ہیں. اس کے اندر ایک ساؤتھ شافٹ ہے, ایک نارتھ شافٹ ہے. اس کے اندر یہ بڑی ایک ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ہیں. مطلب ابھی موٹی موٹی گل ایسی کہ ہنوک نے بائبل پیرامڈ سے لکھی ہوئی ہے. یسایہ 19 باب کے اندر جو ہم نے ورس پڑھی وہ یہ تھی. اب ہم اس کلوز کی طرف آتے ہیں. سمجھ لگ رہی ہے سب کو؟ کیا سیکھا ہے آپ سب نے؟ اپنے اپنے سے سوال کریں کہ میں نے آج کیا سیکھا ہے. کیا جس طرح ہنوک نے اسٹڈی کیا ہے ہم میسج کو پڑھتے ہیں ایسے؟ کیا پڑھا میسج کو کبھی ایسے؟ ریپچر کی باتیں کرتے ہیں. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور اس کا چلنا ایسا نہیں تھا جیسے میں چل رہا ہوں. اس کا چلنا اس طرح کا تھا جو سائنسدانوں کو نہیں سمجھ لگی. اس کا چلنا بڑا مسٹری فل تھا. برائڈ کا چلنا مسٹری والا ہے, بھید والا ہے. کسی بات نہیں کرتے, یہ کوئی مسٹری نہیں ہے, یہ کوئی بھید نہیں ہے. بات نہیں کرتے, سمپل بات ہے, خدا نے منع کیا. یہ تو یہ سارے, اب یہ دیکھیں, یہ سارے ظاہری آؤٹر جو لیئر ہے یہ 1,44,000 ساری اسرائیلیوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. 1,44,000 ہر قبیلے میں سے 12,000 پر جو مور ہوگی 1,44,000. اندرونی ککش کے اندر کوئی اور ہے, آؤٹر سائڈ کے اندر کچھ اور ہے. اندرونی ککش کے اندر وہ 153 مچھلیاں پکڑی گئی تھی. وہ جب تک آخری مچھلی نہیں آئے گی, وہ رحمت ریک مچھلی, وہ جب تک نہیں آئے گی تب تک ریپچر نہیں ہوگا. یہ وہ مچھلیاں ہیں جو کنگز چیمبر کے اندر جائیں گی. میرے پاس وہ پکچر نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے. یہ 7 جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں, جب آپ نیچے آتے ہیں تو کنگز چیمبر کے اندر جو یہاں میں کھڑا ہوں, جتنا میں کھڑا ہوں نا, اتنی سی کوئی جگہ ہے, اتنی سی, جس سے آپ گزر کر آپ اس کے اندر شامل جاتے ہیں.
اور یہ پتہ ہے ہنوک نے یہ کیوں سکڑا بنایا کہ ہمیشہ جب آپ بادشاہ کے ککش کے اندر داخل ہوں گے نا، بادشاہ کے چیمبر کے اندر، تو آپ کو جھک کے گزرنا پڑے گا بادشاہ کی. اس کا مطلب ہنوک کو پتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے کس طرح پیش ہوا جاتا ہے. اسے پتا تھا کہ میرا بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. اسے پتا تھا کہ جس بادشاہ کو میں مانتا ہوں وہ کوئی عام نہیں ہے. اسے پتا تھا کہ 24 بزرگ بھی، اس میں آپ کو 24 بزرگ ملیں گے، اس میں آپ کو وہ 4 جاندار ملیں گے، اس میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. ہاں اب کنفرم ہوا، اب سیکھ لیا. نبی کو کوٹ لگا دی کہ پہلی بائبل خدا نے ستاروں کی شکل کے اندر لکھی اور ہنوک نے وہ بائبل پیرامڈس کے اندر بنائی. پیرامڈس کے اندر اس نے اس چیز کو بنایا. اگر آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے تو آپ پڑھ دیں. اب میں مصر گیا ہوں اور ان احراموں میں میں ساری دوپہر کیسے گزار سکتا ہوں. اب میں احرام کے عقائد پر یقین نہیں رکھتا. ہم کہتے ہیں کہ مجھے ان کے عقیدوں پر کوئی یقین نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں صرف ایک تمثیل بنا رہا ہوں. میں ایک پیرابل یعنی ایک تمثیل دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. لیکن جیسا کہ آپ نے اس احرام کو دیکھا تھا، اس نے کبھی پتھر حاصل نہیں کیا. ہنوک نے وہ احرام اپنے دلوں میں بنایا تھا. ہنوک نے یہ احرام جو تھے اپنے دلوں کے اندر بنائے تھے. یہ احرام جی وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب انہوں نے اس پر تمام قسم کے مذاہب حاصل کیے. ہاں جی، لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ان پیرامڈس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے اس میں مختلف مذہب بنا لیے، مذہب نکال لیے، اپنے سسٹم بنا لیے. اتنے ساڈا بادشاہ بیٹھا ہوتا سی، اور بھائی انہوں نے بادشاہ اتنے کدی نہیں بیٹھا. اوے بادشاہ کسی اور دی جگہ، اوے انہوں نے کدی بادشاہ اتنے بہن جو ہے ہی نہیں سی. نہ انہوں نے بادشاہ سی نہ کدی بیٹھا سی. جی انہوں نے بادشاہ ہوں نہ جدو ایلیا دے نال جنہوں نے نبیوں نے مقابلہ کیتا سی ادو بلاندے تھے کوئی بادشاہ آ جانا. یہ ادو نہیں آیا تے اتنے بھی کوئی بھی نہیں بیٹھا. یہ ساری من گھڑت کہانیاں جو انہوں نے بنا لی ہیں، لیکن جو ہمیں بائبل میں ملی ہیں وہ بالکل خدا کے کلام کے ساتھ پوری اترتی ہے. آسمان و زمین تو ٹل سکتی ہے لیکن میرے منہ کی باتیں آج نہ چلیں گی. جب ہنوک نے پیرامڈس کو بنا لیا اور اس کے بعد طوفان آ گیا اور ساری چیزیں مٹ گئی، ختم ہو گئی. اب نور تھا، نور کی طرف بائبل پڑھتا تھا. نور چاہتا ہے میں عرب مصر کے اندر نور پڑھتا تھا وہاں سے بائبل. نور نے وہاں سے ایمان کو اٹین کیا، نور نے وہاں سے راست بازی کو سیکھا، نور نے وہاں سے سیکھا کہ خدا کس طرح بات کرتا ہے. نور نے پڑھا تھا یہاں پہ کہ ہنوک نے پہلے سے بنا دیا تھا کہ 2000 سال برس گزریں گے، ایک طوفان آئے گا اور نسل انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر وہ کیا اس نے دیکھا ایک قرآن جس مسیح آئے گا جو جسی کی گرانہ میں سے کوپر نکلے گی. وہ کوپر جب نکلے گی وہ کلمہ پراپت کرے گی، وہ آپ کو چھٹکارا دے گی، وہ تمہارا ریسٹوریشن آف پرائٹری ہوگا، وہ جزیرۃ العرب کی بحالی کو لے کے آئے گا. آمین آمین. یہ وہ ساری مسٹریز ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں لیں گے تو پھر ریپچر ہے. دسو آج ایک چیز صاف پڑا جائے، ریپچر ایڈا سادہ نہیں، ریپچر اتنا آسان نہیں ہے جتنا بنا لیا گیا ہے. او مینوں دسو ہجے تک بھی سٹل سائنس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو ابھی بھی الائن کر سکے. تو پھر ہنوک کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ کیا تھا اس کے پاس؟ کیا تھا؟ گاڈ بلیس یو بردر، ریویلیشن تھا. اس کے پاس مکاشفہ تھا. اور نبی کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی کلیسیا کی تعمیر بھی ریویلیشن کے اوپر کی ہے. یہی ریویلیشن آپ کو پنکھ دے گا، یہی ریویلیشن آپ کو اڑنے کا ریویلیشن دے گا. ہم نے میسج کو بڑا سمپل سمجھ لیا اور یقین جانے جو جس طرح میں نے سیکھا ہے اور وہ جدھر سے میں نے سیکھا یا جہاں سے میں نے اسٹڈی کی، وہ بردر پراب سے میری کوئی ڈسکشن ہوئی بڑی دیر پہلے رات کو. میں نے کچھ اس کے اوپر چیزیں پڑھی اور کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے تاثریا سی انہیں جن سے دسیا میں انہیں بیان نہیں کر پایا.
میں ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ नहीं दस सकिया। ये इतनी गहरी बातें हैं, यानी ऐसी चीजें देखिए बाइबल को हम डिफाइन नहीं ना कर सकते। ये मिस्ट्री ऑफ पिरामिड भी ऐसे ही है, जिसको समझने के लिए बादशाह के चैम्बर के अंदर जाना ही हमारा हदफ है ना। हमारा पॉइंट क्या है? बादशाह के चैम्बर में। अब देखेंगे ये तो हो गया जी पिरामिड, ठीक है, ये हनूक ने बनाया, ये हनूक ने बनाया। आसमान के अंदर सितारों के अंदर बाइबल थी, हनूक ने पढ़ा तो उसने पिरामिड को बनाया। आज आप अगर बाइबल पढ़ते हैं, नबी के मुकाशफात को पढ़ते हैं, रेवलेशन को लिया, आपने कुछ नोट्स बनाए, कुछ नोट्स बने नोट्स, कोई नोट्स बनाए, वो जीवन है। हनूक का जीवन कुछ अलग जीवन था। थिंक आउट करें, उतनी कुछ सादी जिंदगी नहीं थी हनूक की। हनूक खुदा को क्या भी पसंद नहीं आया। उन्हें दसो जेड़ा खुदा दे नाल इन्ना प्यार करदा सी, खुदा ने तो पसंद नहीं आना सी। जे खुदा ते नहीं चाहेगा कि ये गुनाह अलुदा दुनिया दे विच प्यार है, खुदा को पसंद आया, खुदा को ले गया। तो जो खुदा को पसंद है, जिन्होंने उस चोटी के पत्थर को ले लिया है, जिन्होंने उस कैपस्टोन को अपनी जिंदगी के अंदर अनुमति दी, आ जा, जो उस रेवलेशन को ले चुका है वही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। ये बात बड़ी बाशगाफ है। अब नया यरूशलेम उतरेगा। वो नया यरूशलेम, कुछ लोग कहते हैं जी टाना बना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो नया यरूशलेम है, जी कर क्या समझ लग रही है सबको? खुदा आपको बड़ी बरकत है। अच्छा, पिरामिड जो अब मेरा पिरामिड का है, हनूक ने तो सीखा तो उसने तो पिरामिड बनाया। उसने 1,44,000 पत्थरों से कवर किया। 50 फीट रोप उसने किंग्स चैम्बर बनाया। 7 उसने गैलरी के अंदर 7 स्टेप्स बनाए। 153 उसने 1,53 सीढ़ियां बनाई उसने। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया। बड़ी डिटेल है पिरामिड्स की, बहुत डीपली है ये चीजें। इनको समझने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी। देखिए हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा इन चीजों को, फिर ये समझ लगेगी। ये हनूक का वक्त ही तो गुजरता था खुदा के साथ, हनूक टाइम ही तो देता था खुदा को, तो फिर ही उसे उठाए जाने का रेवलेशन मिला। अब पिरामिड कैसे बनता है? पिरामिड देखें, चोटी का पत्थर, फिर उसके पीछे पत्थर है, फिर उसके पीछे कुछ पत्थर है, फिर उसके पीछे कुछ पत्थर है, उसके पीछे कुछ पत्थर। नबी ने किस तरह डिफाइन किया? ये है कैपस्टोन। कैपस्टोन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह। अब यीशु मसीह जो 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड है, खुदा की 7 रूह है। इसके पीछे कुछ आप समझ लीजिए, ये है, ये है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह की रूह, खुदा की रूह 7 बार 7 ज़मानों के अंदर आई। नबी ने कहा जैसे ही ज़माना ख़त्म हुआ, वो लोग जो इफ्सस के ज़माना थे, उन्होंने अपने नबी की आवाज़ को सुना, अपने वक्त के ज़माना के नबी को सुना, पैगंबर को सुना, इस्लामकार को सुना, तो वो उसके साथ, उस रेवलेशन के साथ बच गए। ठीक है, और किसके पीछे आ गए? फॉर एग्जाम्पल ये है जी इफ्सस, ये है जी स्मरना, ये परगमन है, इसी तरह ये सारे कलीसिया ज़माने हैं। जो इस संदेश वहाँ के वसीला से बचे,
وہ اس کے وسیلے اس کے پیچھے آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے آ گئی. جو اس کے وسیلے سے بچے وہ اس کے پیچھے آ گئے, جو اس کے وسیلے سے بچے وہ اس کے پیچھے آ گئے, جو اس کے وسیلے سے بچے اس کے پیچھے, اس کے پیچھے, اس کے پیچھے. یہ جو آسمان سے نیا یروشلم اترے گا نا, یہ وہ یروشلم ہے, یہ وہ یروشلم ہے. آگے خداوند یسوع مسیح ہوں گے, اس کے پیچھے وہ 7 فرشتے, وہ پیغمبر, وہ سندیش واہک ہوں گے, اس کے پیچھے وہ دلہن ہوگی, کیونکہ برائی نہیں ہے. 7 سے کلیسیا زمانوں کے اندر سے برائی نکلے گی. اور پھر یہ کہاں بنائیں گے؟ وہ جو آرام مصر کے چکے تھے 1,44,000 پتھر تھے, ان پتھروں کو لینے کے لیے جو ایک سراؤنڈنگ دے گئے تھے, وہ 1,00,000. ہر قبیلے میں سے 12,000 پر بول کرے گا, اور ہر قبیلے میں سے 12,000 سیخ ہوگا. اور یہی حنوک نے اس مصری کو لیتے ہوئے اس پیرامڈ کے چنگرد 1,44,000 پتھروں کو لگایا. اور یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ پیرامڈ ہی نہیں بن رہا, یہ پیرامڈ نہیں بن رہا, یہ ہے وہ نیا یروشلم. یہ ہے وہ نیا یروشلم جو آسمان سے اترے گا. یہ ہے وہ نیا یروشلم. لوگ ابھی تک سمجھتے ہیں آسمان تو کوئی بلڈنگ اترے گی. اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا جناب آسمان سے کہاں اتر رہے ہیں, وہ گھر نہیں ہے, وہ ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے, وہ وچن ہے, وہ کلام ہے. کیا پلوس وچن نہیں تھا؟ میری مانند بنو میں مسیح کی مانند بنتا ہوں, وچن تھا نا. کیا برادر برینم, کیا وہ جو الفا مسنجر ہے اور جو اومیگا مسنجر ہے, کیا یہ پیرامڈ کو ٹائٹ نہیں کر رہے؟ کر رہے. کیا ان کے پیچھے کچھ لوگ نہیں ہیں؟ کیا ان کے پیچھے بچنے والے لوگ نہیں؟ یہ سب مل کر نیا یروشلم بنائیں. یہ ہے وہ نیا یروشلم, یہ ہم مصریوں پیرامڈ. حنوک نے نوٹ بنائے, یہ نوٹس ہیں. یہ ہیں وہ لوگ, سمجھ لگی ان باتوں کی. اب ہمیں اپنی پلیسنگ سمجھنی ہے. جس طرح حنوک نے آسمان کے اندر ستاروں کے اندر اپنی پہچان کر لی, مجھے بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے. مجھے حتی الوسع کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. ریپچر ہمیں نہیں ہو جائے گا. یہ پیرامڈ ابھی 12 راشیاں ہیں, 12 راشیاں, 12 سٹارز ہیں. وہ ایکویریس سے سٹارٹ ہوتا ہے, ایک کواری سے سٹارٹ ہوگا, اور وہ جاتا ہے لیو کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کو سمجھنا, یہ وہ بائبل ہے. ہم نے اسے ساتھی آیتیں سمجھ رکھا تھا. نبی آیا, نبی نے اس کی ویلیو بتائی, نبی نے اس کی ساری چیزیں ہمیں کھول کے بتائیں کہ آیا کہ یہ کیا ہے. اب دیکھیں, گو تھرو کرتا ہوں ساری چیزیں جو ہم نے آج سیکھا. ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ خدا نے یسایہ 19 باب کی 19 آیت کے اندر کہا تھا کہ میں مصر کے بارڈر کے اوپر, یعنی مصر کی سرحد کے اوپر ایک کیا رکھوں گا, ایک نشان کو جو کیا دے گا, گواہی دے گا. اس کا مطلب حنوک کی مرضی پیرامڈ بنانا نہیں تھا, یہ خدا کی کامل مرضی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ اس نے آسمان کے اندر پڑھ دیا ہوگا کہ میں نے پیرامڈ بنانا ہے. ہمیں کیونکہ وہ پڑھ سکتا تھا. اب دیکھیں حنوک نے ان پیرامڈز کو بنایا. آدم ستاروں کی فارم میں بائبل پڑھتا تھا, اور جب وہ ایمان سننے کو ملا اسے حنوک کو, اس کی زندگی کے اندر ایک فیض پیدا ہوا. وہ 7ویں پشت کے اوپر تھا, وہ 7ویں. اب دیکھیں جو 153 ہے, 1 + 2 + 3 + 4 اگر اسے 17 تک پلس کرو تو یہ 1053 بنتی ہے. 17 ان کی بڑی کیلکولیشن ہے پتھروں کی. دیکھیں کوئی بھی جب بنائی جاتی ہے نا چیز, یہاں کوئی بلڈنگ کھڑی جاتی ہے تو اس کی پہنچیں بڑی میٹر کرتی ہے. اور آپ اگر جب میجرمنٹس کو دیکھتے ہیں مصر کی میجرمنٹس کو, اسے دیکھیں یہ کسی اور جگہ پر بناتا پیرامڈ, اس نے پیرامڈ ایسی جگہ پر بنائے جو ارائن کو الائن کر رہے تھے, جو بالکل خدا یسوع مسیح, جو ستارہ خدا یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے, بالکل اسی کو الائن کر رہے تھے. یہ پیرامڈ ہے, اور بالکل اس کے اوپر ایک آپ کے پاس پکچر ہوگی جو اوپر سے ہے, ویو آ رہا ہے اس کا پیرامڈ کا. سمجھ لگی ہے؟ ہمیں ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بائبل کو دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ اوپر ستارے ہیں بالکل پیرامڈس کے, یہ جو 3 پیرامڈس ہیں ان کے اوپر بالکل یہ اورائن بیلٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے 3 ستارے سے, آسمان میں تو بے شمار ستارے ہیں, بے شمار ستارے ہیں نا, تو ہمیں ریویلیشن لینا ہے. پریشان نہیں ہونا میں کہ میں سکھاؤں گا. حنوک کسی سمجھنے میں نہیں جاتا. دیکھیں اس نے حنوک نے, میں بڑی بات مس کر گیا ہوں, یوحنا خدا کے دن روح میں آیا, وہ خدا کے دن روح میں آ کر
बातें उसने कौन सी लिखी जो आने वाली थी। हनूक भी खुदा के दिन रूह में गया ब्रदर, हनूक भी खुदा के दिन में चला गया और उसने रूह में जाकर ये सारी चीजें लिखी हैं, ये सारी चीजें बनाई। उसे कैसे पता था 7 कलीसियां दीवाने हो? उसने पढ़ा था किसी न किसी जगह से। इसका मतलब ये नबी कोई सादा नबी नहीं है, ये आम नबी नहीं है, ये हम पिरामिड्स, ये थी वो मिस्ट्री जो रिवील्ड है, जो खुल चुकी है। अब इन बातों की तरफ फोकस करने की जरूरत है। देखिए, अब आपको जरूरत नहीं है कि मिस्र के अंदर जाके पिरामिड्स को पढ़ें, आपको जरूरत नहीं है कि जाओ कि जनाब मंजी डाल तुसी खुले तारे थले पढ़ते रहो। नोमी सितारों के नीचे क्यों आई? वो सॉरी जो रूम थी वो सितारों की, ये सारी चीजें बाइबल के जब प्लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ पीछे वजूहात थी, रीजंस हैं, वजूहात पाई जाती हैं। अब जरूरत नहीं है कि 4 पाई जनाब खुले आसमान के अंदर बिछा के तो आप आसमान की तरफ देख के बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। आपको खुदा ने बड़ा आसान कर दिया, आपके लिए बड़ा आसान कर दिया। आपके पास ये मैसेजेस की किताबों के ढेर लगे हुए हैं, बड़े इनको ले रेवलेशन में से रैप्चर में जाना ना आपने। आपको जरूरत नहीं है कि अलांतिका मांतिका इन्हां नूं समझण दी जरूरत नहीं पई सानू। हमारे पास सीधे सीधे लफ्जों में बता दिया गया है कि रैप्चर क्या है, रैप्चर कैसे होगा। किताबें कौन कौन किताबें पढ़ना, हमें जरूरत है इन्हें स्टडी करने की, मैसेजेस सुनने की, इस आवाज को सुनने की, तभी तो रैप्चर होगा। असी देखो कितना मुश्किल है ये। अक्सर लोगों ने उत्तों लंघ गया होगा, कोई सारे कैटेगरी के लोग नहीं होंगे कि ये कईयों के ऊपर से बातें गुजर गई होंगी ये। अब ये ऐसी बातें तो ऊपर से गुजर जाए, मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन सर इस बात को समझ लें कि हमारे लिए आसान कर दिया गया है, हमारे लिए बड़ा इजी है, हमारे लिए बड़ा आसान है। सिर्फ आप नबी की आवाज को थाम लें, बस रैप्चर इसी में है। आमीन। फैमिली मीटिंग ना भूलें, फैमिली मीटिंग ना भूलें, अपनी पर्सनल प्रेयर ना भूलें, खुदा से मिलना मत छोड़े, उसके साथ रफाकत रखना मत छोड़े, आपको शैतान तबाह कर देगा। इन जिस तरह हनूक उन सितारों के साथ इन टच था, आप इन नबी के संदेशों के साथ इन टच हो जाए। आपको इसी में ज़्योडिक साइंस मिलेंगे, आप में इसी के अंदर लियो मिलेगा, आपको इसी के अंदर एक्वेरियस मिलेगा, आपको इसी के अंदर स्कॉर्पियो मिलेगा, जेमिनी मिलेगा, सब चीजें इसी के अंदर मौजूद है। हमें फक्त स्टडी करने की जरूरत है, और कोई आसमान से कोई स्पेसशिप नहीं आएगी जो जनाब आपको उठा के ले जाएगी। वो आपका फिर आपका पर्सनल रेवलेशन होगा, जो आपको बेबदलाव का तजर्बा देगा, जो आपके जिस्मों को बदलेगा। आमीन है। ये जो बातें अब देखें स्टार्ट हुआ बड़े जोश के साथ, अब सारे ठंडे हो गए, ठंडे हो गए, कुछ तो ठंडे ना हो गए, अपने आप से पशेमान दौड़ गए। और रात को मैं जब ये पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर शिपा कर दिया, कोई पता ही नहीं, असि तो मैसेज बहुत सिंपल लिया है। यकीन मन जब मैंने सीखा मैं पागल हो जाता, बंदे की यह वाली अक्ल जी बंद हो जाती, ये वाली अक्ल फिर मसीह का सीखनी चाहिए। फिर आपको हनूक हमेशा मोटिवेट जाता था, हनूक आमीन हालेलुया प्रेज गॉड, वो खुदा की तारीफ गाता, हमद गाता। कैसे पता चला? मतलब अय्यूब को, जब अय्यूब था ना, देखिए पैरामिड मौजूद था, पैरामिड मौजूद था, ये गवाही के लिए मौजूद था। ऐसे सबको रेवलेशन नहीं मिल गया, कुछ मौजूद था, खुदा ने कुछ साइन रखा था जमीन के ऊपर, खुदा ने कुछ रखा था जमीन के ऊपर। अब मेरा सवाल मेरे अपने आप से है, मैं क्या स्ट्रगल कर रहा हूं? मैं कौन सी बाइबल पढ़ रहा हूं? आदम को खुदा ने पढ़ाया, खुदा एक अच्छा टीचर है। आखिरी बात करूंगा, बिल्कुल लास्ट आखिरी बात। नबी ने एक एग्जांपल दी, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बच्चा है स्कूल जाता है, वो अच्छे तरीके से चीजों का फॉलो समझ आती है आपको? सुन रहे हैं आप? सब बोलेंगे आमीन हालेलुया। अब देखिए जाग रहे हैं हम सब। जब कोई माँ या बाप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन देता है तो
اب وہ اچھے طریقے سے کلاس میں اگر اچھے طریقے سے چیزوں کو نہیں نہ سمجھ پاتا تو ماں باپ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ٹیوٹر ارینج کرتا ہے, اس کے لیے کوئی ٹیوشن دکھائے گا تاکہ میرا بچہ اس ٹیوشن پہ جائے, وہاں پہ جا کے سیکھے. ایک باپ ہے, اگر وہ بچہ جس کے لیے جسے اسکول بھیجا جا رہا ہے, جس کے لیے ٹیوشن ٹیوٹر رکھا گیا, اب دیکھیں وہ اگر چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا تو اس کا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کی بہت زیادہ میراث ہے, اس کا ایک ہی بیٹا ہے, تو وہ بڑا فکر مند نہیں ہوگا؟ فکر مند ہوگا نا کہ اب کو میری میراث کیوں سانبھے گا ہے, یہ تو اڑا پڑا چڑھے گا. یہ ریویلیشن آپ کو ایسے نہیں مل جائیں گے, یہ میراث ہے ہماری. اور میراث دیکھیں, اڈاپشن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں اڈاپشن کا مطلب؟ اڈاپشن کو لے والا غلط ٹرانسلیٹ ہوا ہے. ہم نے جو اڈاپشن سیکھا نا, نبی نے جو میسج دیا ہے وہ لے پالک نہیں ہے برادر. میرے بھائیوں بہنوں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کافی زیادہ مسٹیکس ہیں. لے پالک کوئی بندہ کوئی ایک بچہ انٹروڈیوس کر بھائی تسی لے پالک کو تسی کی کہو؟ لے کے پالنا. یہ لے پالک اڈاپشن یہ ایسی نہیں ہے بائبل کی کہ لے لیا خدا مجھے سمسی نے, یہ مطلب ہے کہ کسی فزکس میں ہوتے ہیں سب تو صرف لے کے پالے ہمیں, ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم اسی کے تھے, اسی کے ہیں. وہ کہہ رہے تم مسیح کا بدن ہو, تم خدا کا مقدس ہو, خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر آپ کسی اور کے ہوتے, اور تو پھر دوسرا ایک اور ہی ہے, اور جو تھا وہ قائم تھا, وہ سرپنٹ سیڈ ہے. ایک مطلب ایک سرپنٹ سیڈ ہے, ایک جین آف گاڈ ہے, ایک مورٹل ہے ایک امورٹل ہے, ایک ختم ہونے والا ایک نہ ختم ہونے والا. تو ہم تو نہ ختم ہونے والے کے بیٹے ہیں نا. اس کا مطلب اڈاپشن جو نبی نے پرچار کیا وہ لے پالک نہیں ہے. اس کا مطلب لگ گیا ادھیکار, بیٹے کا ادھیکار دینا, پتر ادھیکار جسے بولتے ہیں. سمجھ لگی؟ بچہ جو پہلے دن پیدا ہوتا ہے تو باپ اپنا بزنس سارا پہلے دن سپورٹ کر دیتا ہے, اسے کیپیبل بناتا ہے, اس کے لیے ٹیوشن ارینج کرتا ہے, اس کے لیے وہ اسکول اچھا چنے گا, اس کو گھر میں وہ ٹائم دے گا, اس کے اوپر فوکس کرے گا, اور اسے بتایا جائے گا کہ تو یہ کلا, تو یہ وارث. آج ہم کو بتایا جائے تو ہی وارث ہے جو اس ساری میراث کا مالک ہے. وہ ٹیوٹر تھا جو آتا تھا اسے ستاروں کے اندر بائبل پڑھاتا تھا, وہ جو اسے ٹیچنگز لی وہ ان ٹیچنگ سے پھر گیا, اس نے میراث کو کھو دیا. آمین. یہ تھی وہ میراث جو خدا نے آدم کے لیے بنائی تھی. آدم گرا, ہوا گری, میراث چلی گئی, میراث کھو گئی. میراث کھو گئی تو ریسٹوریشن چاہیے, دوبارہ کوئی میراث چاہیے, چھڑانے والا کرامتی چاہیے, نجات دہندہ چاہیے. جس طرح بوئز نومی کا جو کھو گیا تھا, بوئز اس کے لیے کائنسمین ریڈیمر بنا, چھڑانے والا کرامتی بنا, اور اس کو جو چیزیں کھو چکی تھی اسے دوبارہ ملی. اس کا مطلب میراث ہماری اپنی ہی ہے, ہم کسی اور کے بچے نہیں ہیں, ہم خدا کے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہمیں ہماری ہی میراث ملے گی. لیکن کب؟ جب اب آپ اس میراث کو لینے کے کیپیبل ہو جائیں گے. آپ قابل تو ہو ان ریویلیشن کو سنبھالنے کے لیے. ایمی خدا ہے, ایمی خدا ہے, آپ تو بیکار دو گے ان چیزوں کو, آپ تو تباہ کر دو گے وہ سارا. ہمارے باپ کا بزنس ہے, نبی نے کہا میرے باپ کا بزنس ہے, اور میرے باپ کا بزنس روحیں بچانا ہے. یہ ہماری میراث ہے, ہم اس میراث کو کھونا چاہتے ہیں. یہ میراث بیسیکلی کھو گئی تھی, پھر اس نے بڑا کیا کیا, اس نے ہمارے لیے ٹیوٹر گیا. نبی کہتے ہیں ٹیوٹر روح القدس ہے, اور خدا نے ہمارے لیے روح القدس ارینج کیا. ٹیوٹر, میں جاؤں گا, دوسرا مددگار دوں گا, جو کھیت کی باتیں وہ تمہیں بتائے گا, سکھائے گا کہ کس طرح تمہیں ادھیکار کو لینا ہے, کس طرح مسپراس میں سے لینا ہے. آپ نے سادہ باتیں نہیں تھی. خدا نے, نبی کہتے ہیں خدا نے اس کے ہمارے لیے ٹیوٹر ارینج کیا. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ باپ جاتا ہے ٹیوشن جدھر رکھی ہے بچے کو, جا کے میٹنگ جنہوں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کہی جائے, جنہوں پی ٹی ایم ہوتی ہے, جنہوں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, سکولاں چ کالجاں چ ماواں بھੈਣਾں جاندیاں نے تے جا کے پوچھدیاں نے کہ ساڈا بچہ کیسا جا رہا ہے.
کیا اس قابل ہو گیا ہے کہ میراث میں شامل ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو کچھ اور محنت کی ضرورت ہے. خدا نے ہمارے لیے ایک ٹیوٹر ارینج کیا، اسے روح القدس کہتے ہیں، اسے ہولی گوسٹ کہتے ہیں. وہ ہولی گوسٹ آتا، ہماری رہنمائی کرتا، ہمیں ٹیوٹ کرتا، ہمیں بتاتا، ہمیں ڈفرنٹ اینگل سے ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سکھاتا. لیکن جب تک ہمارے اوپر تو سیل آف گاڈ نہیں آتی، وہ کب آتی ہے؟ جب آپ اپنا فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں لیتے، جب ادھیکار ہمیں نہیں مل جانا، ریپچر کے کینڈیڈیٹ ہمیں نہیں بن جائیں گے. ہم اس سے پہلے ٹیوٹر کی باتوں کو فالو کرنا پڑے گا. وہ ٹیوٹر آتا، پھر وہ باپ کے پاس جاتا ہے، باپ انویسٹیگیٹ کرتا ہے، کیا یہ میرا بچہ، کیا میرا بیٹا جنید، کیا میرا بیٹا ندیم، یا جتنے ہم بیٹھے ہیں، کیا میری بیٹی کیا اس میراث کو لینے کے قابل ہو چکی ہے؟